very esteemed panel with us, Dr. Rajiv Prasad, Dr. Vibhavre Nigale, and Dr. Sunita Lal Gur from across India. They have joined us. And Ishita, just if you can take us through the slides, I will introduce each panelist in short. So Dr. Sunita. I think we've lost you, Anubhav. Lost him. Yeah, I think there's some internet. No. Okay, he's there. Yeah, he's back. I'm always here. Don't worry. So, Dr. Sunita is a senior eye surgeon and ophthalmologist, and working in Delhi NCR for the past 35 years. Presently, she is the medical director at AccuVision Eye Center in Sarita Vihar, and she has been associated with us for the past 10 years, guiding each person with albinism with utmost care and love and patience. And I have only good praise for you, doctor. Please welcome to the seminar. Thank you. Can I ask everybody to mute themselves, please? Dr. Vibha Nigale. Dr. Vibha Nigale is a dermatologist from Goregaon, Mumbai. She has an experience of over 30 years in this field. And Dr. Vibha Nigale practices at the Kimaya Skin and Cosmetology Center in Goregaon West. So welcome, doctor. This is our first interaction. Hope there will be many more. And we hope that you will be able to solve many of the queries that will be presented to you today. Welcome, ma'am. And Dr. Rajiv Prasad is a senior optometrist, currently having his practice based in Jharkhand and Bihar. He was trained in Japan and US in eye screening and for special population, and has further served for 5 years as Asia Pacific Director for Health at Special Olympics International USA. So welcome, Dr. Rajiv Prasad. Again, our first interaction online with you. And we hope there will be many more interactions. We would look forward to having some meaningful conversations with you. Thank you, doctor. Ishita, you can take over. You can explain the house rules, any do's and don'ts, and then we can take it with our first speaker for today. Okay. Hello, everybody. Happy International Albinism Awareness Day. Welcome to today's session on vision and skincare. I am going to quickly let you know how this session is going to proceed. After all the welcomes done by Anubhav, we will have our first speaker, Dr. Sunita, who will explain to us about vision of a person with albinism, followed by Dr. Rajiv, जो nystagmus के बारे में थोड़ा और detail में explain करेंगे. Next, we have Dr. Vibha, who will then give us more tips and ideas about how to manage our beautiful skin. Followed by a question answer session, which will be moderated by our very own Priyanka. And at the end of today's session, once we've done all our thank yous, we will have time for a social gathering, a chat, getting to know each other, and celebrate our day. So welcome, everybody. There are some housekeeping rules. So during the session, could you please ensure your microphone is muted while the speakers are talking? In this way, disturbance बहुत कम होगा. Camera up to you. You can leave it on. You can turn it off. Entirely up to you. I want to let you know that during the session, अगर आपके पास कोई comments है, कोई questions है, Zoom में एक chat box function है. Please अभी आप जाके अपने आप को introduce भी कर सकते हैं chat box में, questions, comments जो भी डालना है उधर डाल सकते हैं. It will be monitored
and one of the team will respond to you. Also, I want to let you know कि ये webinar पूरा record हो रहा है, just so it can benefit the people who could not attend the live session, and it will be uploaded on YouTube and you will be sent the link. So back to you, Dr. Sunita. Good evening, everyone, and wish you all International Albinism Awareness. And we stick to the theme of this year, shining always, and you people really shine always. So let's start it. Now, next slide, please. Yeah, albinism, I'll not speak about definition and all because we all are aware about it. But there are two main types of albinism. There are a lot of types, but there are two main types, that is oculocutaneous and ocular albinism. Now, why this thing happens? It happens because there is a mutation. जो genes होता है, वहाँ पे कहीं पे mutation होता है, जो उसकी वजह से जो एंजाइम जो हमें कलर पिगमेंट देता है, हमारी चमड़ी में, हमारे बालों में, हमारे आंखों में जो पिगमेंटेशन देता है, जिसकी वजह से कलर आता है, वो उसमें वो कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो कलर जब कम हो जाता है तो इसकी वजह से अल्बिनिज्म होता है. अब इससे क्या होता है? What will happen if this albinism is there? Then it will interfere with the visual structure. जो vision पे अगर हम बात करें, उसका structure affect हो जाता है, and thus it leads to delay in development of the function also. So once the discoloration is there, pigmentation is less, it leads to discoloration of the hair, skin, iris, and whole body also. It happens. Some people will have in the whole body, whole skin is affected. So it is with eyes problem, it is called as oculocutaneous. Here the vision problems are much more, while in ocular albinism, it affects only the eyes. And in this, the vision can range from maybe a very less defect to very severe defect also. Next. So now coming, these are the main, we have seen that many people come with a lot of problems with albinisms. Let's discuss one by one. Next. First thing is what we see, what we say. Why? What is vision? So whenever we have this problem, person's vision is affected. It can lead to less vision for distance and near. But the good part is that most of the people had good functional vision. Now what we say, what is functional vision? Functional vision is the vision which you have to carry a particular task. Here we don't define that itni visual acuity chahiye, hame 6x6 चाहिए, 6x60 चाहिए, वो हमें जरूर चाहिए from maybe from what we say certification point of view or benefits point of view. But when we say functional vision, usually people with albinism have very good functional vision, and this is the positive point where we tap on this and then go forward, and we don't feel okay, I'm having, if my vision is 636, I will not be able to do. No. People with albinism have good functional vision. So what happens? You have a low visual acuity for distance and near. You can see the blurred vision or fuzzy vision. You can sometimes see with overlapping of words when you read. So these are the main problems with the visual acuity. So next. Quick request, ma'am. If you can just speak also in Hindi a bit. Yeah, that will leave. I'll mix it then. Yes, please. Yeah. दूसरा प्रॉब्लम जो पहला हमने जब हम विजन पे बात किया, दूसरा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमने देखा है ग्लेयर मतलब क्या होता है? ये हम लाइट को सेंसिटिव होती है, मतलब हम जब लाइट की तरफ देखेंगे या ज्यादा लाइट होती है तो आंखों में चुभती है, जिसकी वजह से हमें देखने में परेशानी होती है. इसके भी बहुत, इसमें भी यही सबसे ज्यादा डिसेबिलिटिंग होता है. इसका भी कई सारे रेंजेस होते हैं. किसी व्यक्ति का जो अल्बिनिज्म वाला व्यक्ति है उसमें कभी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, किसी को कम प्रॉब्लम होगा. इसमें बहुत वैरायटी, बहुत रेंज मिलती है. ये क्यों रेंज मिलती है? क्योंकि डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पिगमेंटेशंस व्हिच आर अफेक्टेड. अगर हमारा पिगमेंटेशन बहुत अफेक्टेड होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, कम अफेक्ट होगा तो कम, किसी को कम, मतलब कम प्रॉब्लम होता है. बट कई बार हमने देखा है कि
बहुत बार हम अडेप्ट हो जाते हैं इस ग्लेयर प्रॉब्लम से, हमारा ब्रेन अडेप्टेबिलिटी हो जाता है, हम ऊपर से चश्मे और ये सब जो हम आगे बताएंगे कैसे उसको प्रिवेंट करना है, तो ये सब जब चीज़ें यूज होना स्टार्ट होती है, then you become used to that glare which is there because of the adaptability. Next. तो फर्स्ट हो गया विजन प्रॉब्लम, सेकंड इज ग्लेयर, थर्ड इज निस्टैग्मस एंड स्क्विंट. निस्टैग्मस राजीव जी हैंडल करेंगे इसको. एंड निस्टैग्मस में क्या होता है, आंख हिलती है. इसमें आगे डिटेल्स में जो बोला जाएगा, इसलिए मैं अभी ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी, दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन. Second part is the squint which is there. Okay, so squint में what happens, your alignment of both the eyes is not good. Now why this happens, because the vision is less, the pigmentation is less, and whenever you are focusing, your eyes keep moving, they don't fix at one point, so this leads to squint formation. Squint मतलब उसको हम हिंदी में बैंगापन भी बोलते हैं, हम हमारे मेडिकल टर्म में उसको स्क्विंट बोलते हैं. अगर बहुत ज़्यादा डिग्री का स्क्विंट होता है तो इसका करेक्शन किया जाता है, अगर मॉडरेट डिग्री का स्क्विंट होता है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते, करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. और इसमें कई बार अगर क्यों हम बोलते हैं जब ज़्यादा स्क्विंट हो, क्योंकि दोनों आइज़ का अलाइनमेंट जब हम करते हैं तो दिस लीड्स टू गुड बायनोकुलर विजन, इट गिव्स सम एक्सटेंट टू द बायनोकुलर विजन. दैट इज व्हाई इफ द स्क्विंट इज मोर, then it has to be corrected at an appropriate time. मतलब सही समय पे उसको करेक्ट किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉब्लम है रिफ्रैक्टिव एरर. हाँ, ये एक्चुअली मैंने फोर्थ पे डाला है, बट फर्स्ट होना चाहिए. ये हमने कई बार देखा है, जो whoever has albinism, they do have like 90% I would say it is associated with refractive error. Now refractive error जब हम बोलें कि जो हमारा आँख जब फोकस होता है उसमें जो नॉर्मल रेज रेटिना के ऊपर पड़ते हैं, वो रेटिना के ऊपर ना पड़ के उसके आगे या पीछे पड़ता है. सो व्हेनेवर द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना तो उसको हम मायोपिया बोलते हैं. मतलब हमें नज़दीक की चीज़ ज़्यादा अच्छी दिखती है, दूर की चीज़ कम दिखती है, जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलेंगे. एक इसमें और दूसरी कंडीशन रहती है जिसमें जो फोकस ऑफ रेज है, जो आपको इस डायग्राम में भी दिखता होगा, वो रेटिना के पीछे जाके पड़ता है. अब इसमें क्या होता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन बोलते हैं या फारसाइटेडनेस. उसमें ये रहता है कि हमको दूर का, वी कैन सी द फार विजन इज गुड बट विच इज गुड बट फजी, बट नियर विजन काफी अफेक्ट हो जाती है, तो नियर में फोकस करने में प्रॉब्लम होता है. एंड तीसरा कंडीशन होता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें आप ये हमारी स्लाइड में आप फिगर पे यू कैन सी, जो भी ये रेज है दे आर नॉट फोकसिंग एट वन सिंगल पॉइंट. ईदर वन पॉइंट विल फोकस ऑन द रेटिना, सेकेंड point can focus in front of the retina, it can focus behind the retina, so it gives you a fuzzy and blurry image. You can see in this condition, you can see जैसे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको दूर का नहीं दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया में होगा आपको नजदीक का नहीं दिखेगा, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में आपको दिखता सब है लेकिन सब कुछ फजी है. इसमें यूजली कंडीशन में क्या करते हैं लोग अपनी आंख को ऐसे स्क्विज करते हैं और क्लियर करने की. आप सब अगर अपनी जगह पे बैठे हो, स्क्रीन देख रहे हो, आप खुद अभी स्क्विज करके देखिए, थोड़ा सा बेटर दिखने लगेगा. फिर जब आप पूरा अच्छी तरह से आंख खोलोगे तो थोड़ा फजी सा हो जाएगा. तो ऐसे वाली चीजों में ये यूजली एस्टिग्मेटिज्म के साथ एसोसिएटेड रहता है. अब रिफ्रैक्टिव एरर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज वी नो दैट अल्बिनिज्म के साथ ये कंडीशन रहती है, तो एवरी चाइल्ड हैज टू बी स्क्रीन्ड. बिकॉज अगर हमने रिफ्रैक्टिव एरर को टाइम पे नहीं करेक्ट किया, ज़्यादा अगर अमाउंट का रिफ्रैक्टिव एरर है एंड हमने टाइम पे नहीं करेक्ट किया, सो इट लीड्स टू लेजी आई, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्लायोपिया. ठीक है, इसको हमारे मेडिकल टर्म में वी कॉल दिस एट एम्ब्लायोपिया. सो लेजी आई इज दैट if the child is not corrected with refractive, already we know that the vision is less, ऊपर से रिफ्रैक्टिव एरर भी आ गया, ऊपर से ग्लेयर प्रॉब्लम भी है, ऊपर से कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कम है. जब इतनी सारी विजन की प्रॉब्लम है, अब ग्लेयर को हम एक्सटर्नल फैक्टर से करेक्ट करेंगे, कंट्रास्ट को हम लाइटनिंग कंडीशन से करेक्ट करेंगे, बट रिफ्रैक्टिव एरर को अगर नहीं करेक्ट करेंगे तो इट कैन लीड टू लेजी आई. और ये आइडियली इट शुड बी करेक्टेड बिफोर द एज ऑफ 7 years.
अगर हमने 7 साल के पहले इस चीज को करेक्ट कर लिया तो chances of the eye going into laziness is very less. Okay, so we need to tackle this problem and do an eye examination as early as possible. वो मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है. Next. दूसरा प्रॉब्लम जो एल्बिनिज्म के साथ मिलता है वो कई बार, अभी हमने लिखा तो एक मेडिकल टर्म है, बट इसमें जो आंख की नस जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं वो पूरी पैदाइशी बनी हुई नहीं रहती है. तो अगर पूरी पैदाइशी नहीं होती है तो फोकस के लिए जो हेल्प करती है, ब्रेन तक जो इमेज लेके जाती है, उसको फोकसिंग में दिक्कत होती है. ये तो या तो ऑप्टिक नर्व का हो सकता है या मैक्यूला एक रीजन रहता है जहाँ मेन विजन फॉर्म होती है. तो इन दोनों का पैदाइशी बनावट ठीक नहीं होती है, इसी वजह से हमें फोकस करने में दिक्कत आती है. और दूसरा प्रॉब्लम जो 6वां प्रॉब्लम है कैटरेक्ट. ऐसे नहीं बोलेंगे कि हर एल्बिनिज्म में कैटरेक्ट होगा, बट कैटरेक्ट एल्बिनिज्म वाले जिनको एल्बिनिज्म होता है उसमें कैटरेक्ट फॉर्मेशन जल्दी होता है. ये क्यों होता है? और मेनी टाइम रीजंस आर नॉट नोन, बट इट इज एन एसोसिएटेड कंडीशन जिसमें मतलब किसी को 30 इयर्स में भी हो सकता है, किसी को 25 इयर्स में भी हो सकता है, किसी को 60-70 इयर्स में भी हो सकता है. नॉर्मल इंडियन सिनेरियो में कैटरेक्ट हम लेके चलते हैं बिटवीन द एज ऑफ 55 to 60, बट इसमें बहुत रेंज मिलती है. या तो हमें जल्दी भी हो सकता है या नॉर्मल 60-70 इयर्स में भी हो सकता है. तो अच्छा, नेक्स्ट. सो हाउ वी हैव टू अप्रोच. अब ये हमने सब चीजें तो देख ली कि हमारी विजन लेस होती है, ग्लेयर प्रॉब्लम होता है, कॉन्ट्रास्ट कम होता है, दिखने में जो दूरी की चीज होती है उन सब में कमी आती है. तो हम कैसे अप्रोच करेंगे? यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है कि अगर बच्चे चिल्ड्रन गोइंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड अडल्टहुड. सो हाउ वी हैव टू अप्रोच to albinism in infants. ठीक है, we have to first always remember कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल माँ बाप के जो रिएक्शंस होते हैं, ओ वाइट बेबी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, कुछ ऐसी दवाइयाँ तो नहीं ली, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, तो हम तो पहले उस समय ये ध्यान नहीं आता है कि बच्चे की विजन में प्रॉब्लम होगा या नहीं प्रॉब्लम होगा, वो कभी नहीं ध्यान आता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो ध्यान जाता है वो बच्चा सफेद रंग का है, भूरे सफेद बहुत बाल है, आंखें थोड़ी छोटी सी है, अलग कलर की दिख रही है, बट ये कई बार ध्यान नहीं आता है कि इनको दिखता कितना है. बट लकीली nowadays the awareness has by all this efforts which you people have done, awareness बहुत अच्छा हो गया है. तो इसलिए हमें अप्रोच इन बच्चों को पैदा होते से ही करना है. अब जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी माँ की तरफ या कोई फेस रिकॉग्निशन बिटवीन 3 to 4 months में पूरा डेवलप हो जाता है. बट इन बच्चों में ये डिले होता है. ऐसे नहीं कि नहीं होगा, बट डिले होता है. तो जब भी वैसे डिले होता है, फिर भी हमें ऐसे बच्चों में भी हमें एनकरेज करना है कि बच्चा माँ की तरफ देखे, उनको अपनी तरफ सामने बिठाना है, उनको अपने फेस की तरफ बिठा के रखना है कि वो आपको देखें. कोई अच्छे खिलौने उनके फेस के आगे लेकर आ सकते हैं, कलर्ड खिलौने, जिससे बच्चा उसको देखना चालू करे, क्योंकि ये स्टिमुलेशन देना बहुत जरूरी है. हमारा ध्यान सब उसी तरफ जाता है कि अरे बाप रे एल्बिनिज्म वाइट बच्चा हुआ, अब कैसे करें, क्या होगा. वो तो अब जो होगा वो हमें पता है, लेकिन शुरू से ही हमें इनको विजन स्टिमुलेशन देते रहना पड़ेगा. कई बार ऐसे भी देखा गया है कि बच्चे आंखें बंद करके रहता है, तो हमें ये देखना है कि हमारे कमरे में जो लाइट है वो अप्रोप्रिएट हो, बहुत ज़्यादा फैला हुआ लाइट ना हो, बहुत इंटेंसिटी वाला लाइट ना हो, लेकिन अंधेरा भी नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर आप बच्चे को अंधेरे में रखेंगे तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा लाइटनिंग कंडीशन को. इसीलिए बच्चे को अप्रोप्रिएट, जैसे जिसमें हम बैठते हैं लाइट में, हम भी अगर ज़्यादा लाइट करके बैठेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है. तो अप्रोप्रिएट लाइटनिंग कंडीशन में रखना है. और हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट आई चेकअप शुड बी डन between the age of 3 to 6 months to rule out any refractive error. क्योंकि अगर हमने बचपन से ही रिफ्रैक्टिव एरर को पकड़ लिया तो बच्चे को उसी समय अगर हम चश्मा देते हैं, डॉक्टर आपको बताएगा सिग्निफिकेंट है या छोटा सा रिफ्रैक्टिव एरर होता है तो कई बार हम ना ही देते चश्मे का नंबर. अगर लेकिन काफी
सिग्निफिकेंट नंबर रहता है जिसमें हमें पता है कि इससे लेजी आईज हो सकती है, क्योंकि लेजी आई के भी हमारे दायरे बने हुए कि इतना लेजी आई इतना नंबर मायोपिया में रहेगा तो लेजी आई रहेगा, इतना एस्टिग्मेटिज्म होगा तो लेजी आई रहेगा, इतना प्लस नंबर होगा तो लेजी आई होगा। तो कई बार हम डॉक्टर्स भी अगर हमें सिग्निफिकेंट नंबर नहीं लगता है तो हम बोल देते हैं अभी छोड़ दीजिए, अभी नंबर हम चश्मे का नहीं देंगे, तो हम आफ्टर 6 months या बच्चा जब 2 साल का हो जाए फिर रीअसेस करेंगे। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रीअसेसमेंट एंड रीअसेसमेंट इस दौरान। लेकिन बच्चे को हमेशा अब इन्फेंट से लेके वो 1 साल 2 साल 3 साल जब तक स्कूल नहीं जाता है, इसकी विजुअल स्टिमुलेशन मतलब उनको एनकरेज करना है कि अपना विजन यूज करते रहे, क्योंकि बच्चे का फंक्शनल विजन तो बहुत अच्छा रहता है। सो वी हैव टू एनकरेज देम टू यूज विजन। ओके, दूसरा, छोटे बच्चे को जब भी आप बाहर लेके जाते हैं तो एक कैप जरूर लगाएं और फुल स्लीव्स। ये अगर हमने बच्चे में शुरू से ही किया है तो बाद में बच्चा कैप को लगाने में आनाकानी नहीं करता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कमिंग टू इन द स्कूल एज ग्रुप, अगेन ये इनके लिए न्यू लाइफ होती है, तो ऑलवेज हमें एनकरेज करना है। प्री स्कूल, स्लाइड बिफोर दैट, please go to the slide before that, before this slide. So again in preschool, kai bar, because I get many of questions from parents, should we send them to the school? Yes, you send them to the school, because again school environment is a very good environment which helps the child to get mix up with the peer group. Again they have to start using their vision, and third is once they go to school they will start wearing glasses also, because they learn to see clearly. Next, and always remember big, brighter and bolder, ये 3 B's जो आपको दिख रहे हैं स्लाइड में, हम जब भी बच्चे के विजन के बारे में बात करते हैं तो वी हैव टू कंसंट्रेट कि ऑलवेज गिव देम बिगर थिंग, ब्राइट बोल्डर थिंग टू सी, बिगर थिंग टू सी, एंड ब्राइटर मतलब बहुत ब्राइटर शाइनी ना हो, बहुत ज्यादा लाइट ना है उसमें से। कोई भी आप उनको ऑब्जेक्ट, टॉयज, कुछ भी चीजें देते हैं तो आप उनको बड़े दीजिए, bold दीजिए, but it should not be too shiny. Next, yeah, in school once again the child has come to a preschool, they get used to it, then again going to school is not a problem for them, because here they start learning how to use vision. Okay, once they have started using vision, now comes how much is the child able to see? If they're not able to see the blackboard, then to get the assessment done, get proper glasses number, and then make a certificate from a doctor or from a doctor, and so that the child sits closer to the blackboard. That is the first approach. Now regarding any optical device like telescope अगर हमें देना है तो वो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। कई बार मैंने अल्बिनिज्म बच्चों में एट द एज ऑफ 5 to 6 years में भी इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ऐसे इसमें मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि बच्चा जब 5-6 साल का होता है आप उनको टॉय टेलीस्कोप दीजिए लेकर, जैसे वो दूर की चीजें देखना स्टार्ट करें। एक बार उनको हैंडलिंग आ जाती है तो फिर हम टेलीस्कोप देना हमें इजी लगता है, उनको ट्रेनिंग देना अच्छी लगती है। ठीक है, कई बार हमने देखा है कि विजन की बहुत रेंज होती है। अब जैसे मायोपिया जिनको रहेगा वो बच्चे नजदीक का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, जिनको हाइपरमेट्रोपिया रहता है वो उनको नजदीक का काम करने में इतना दिक्कत होती है कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को काम कैसे कराएं। तो ऐसे इसमें उनको चश्मे का नंबर पहनना बहुत जरूरी होता है। उनको हमें एनकरेज करना है कि कलरिंग, because your color vision is good, so they can do lot of coloring, paintings, all these things. Writing skills improve करने के लिए we have to go for large prints. First, always start with large prints. Okay, so take care about this. Use large print textbooks for them. Again, you can enlarge the fonts on the computer and show it to them, so that they become aware about it. अगर हम उनको aware नहीं कराएंगे तो बच्चे का interest नहीं आएगा। So always make them to see, look and look. Then once a child is big enough, maybe class 3, 4 या 5 में आ जाता है, then we can introduce some magnifiers for reading also to them. Some children will require, some children will not require. So that happens only after the assessment is done. So इसलिए एक बच्चे का जब भी उनका स्कूल जाने का होता है
always get a low vision assessment, because we have seen that many people go to eye specialist. Many people, they go to from one hospital to another hospital कि इनका vision का problem है. But I have seen most of the children, because I myself am an ophthalmologist, but there are many ophthalmologists who are not oriented to low vision, which is there. So you have to show your child to a low vision specialist who will guide you how to take care about all these things. कि कब हमें टेलीस्कोप इंट्रोड्यूस करना है, कब हमें सब चश्मे के साथ रहना है, कब हमें मैग्नीफायर देना है. Next. And yes, now once they are all adults, we all know there are different challenges. Psychological pressure changes are there, peer pressure is there, so a lot of things. So we have to prepare our child where when they come into adulthood, they are not under so much pressure. So this has to be done from the beginning itself, because I have seen most of the time parents are either depressed or they are finding some solutions कि इनकी आँख पूरी ठीक हो जाए, इनके बाल पूरे ठीक हो जाए. We know about this condition. We have to learn to accept it and then move forward. क्योंकि मुझे लगता है, देखो, जब हमारे पेरेंट्स मतलब एक जब जो बड़े अभी एडल्ट्स है अल्बिनिज्म में, उनके पेरेंट्स को ये सब चीजें नहीं पता थी, ठीक है, तो इसलिए वो सब बीमारी का दोष ढूंढ रहे थे और उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे. लेकिन अभी अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग, awareness days celebrating and all, we know that it is there. Okay, so we have to accept it and make the child cope up with what other routine normal other children without albinism are doing, and they do very well. I am surprised to see all my children who are having low vision and albinism, they are doing so well. They are doing so well, and I feel very happy. So we have to always encourage them to use their vision, use proper glasses if it is there, use the combination of optical and non-optical devices. Counseling again is a factor. Career choices we can plan, and then we have to take care of the other problems like skin, hair, which also comes with albinism. So we need to take care about it. Next. So this is, I want to end that as this theme is there, that we have to keep on shining. So we will shine together and take care of yourself. Thank you, Sunita ji. Thank you very much. I can take questions in the end, I think so. Yes, let's leave all the questions for the end. Yeah. Okay. We have Dr. Rajiv, who will be explaining nystagmus. So hi, good evening everyone once again, and first of all wish you all a very happy International Albinism Day, and thank you for giving me this opportunity to be with you all. So I'll be coming to nystagmus. Can I have next slide? Yeah. Oh, that one. Thank you. So nystagmus comes from a Greek word which is nystagos, which means drowsiness. Next slide, please. Yeah. So as I said, it comes from Greek word nystagmos, which means drowsiness, and nystazine means to nod off or be sleepy. It can be described as periodic involuntary movement of one or the both eyes, either a fast or slow oscillatory movement. It is often also called as dancing eyes, where you cannot control your eye movements. So next slide, please. And when we say movement, I mean, there's lot many things which is involved and attached to it. So that movement can be of different type, which is pendular type. So it is like very horizontally, it is very jerky kind of. You cannot, even if you try it, you cannot keep it in one go. It's kind of plain type where it is either going horizontally very straight and then either vertically, or at times it rotates a bit, which is torsional one. Frequency can be noted, I mean, in 1 minute, what is the jerk kind of. And manifestations, yes, I mean, there are two kinds, manifest and latent. So we'll come, next slide, please. Doctor, can you speak a little bit in Hindi? Sure. Okay. So
निस्टैग्मस का जो टाइप है वो कई तरह का होता है, जिसमें कि आंख कई बार हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, कई बार वर्टिकल मूव कर रही है और आपका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है। सो उसकी वजह से आप कई बार कुछ चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं बट वो कई बार शेकी नज़र आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में भी जा रहा है, वर्टिकल भी जा रहा है, जैसे आप ये स्लाइड्स में देख सकते हैं। 3 तरह का स्लाइड मैंने 3 तरह का ये GIF डाला है, सो यू कैन सी ये मूवमेंट किस तरीके से जा रहा है। रोटेशनल भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा कई बार हो जाती है और चीज़ों पर किसी चीज़ को देखने के लिए फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा आप देख सकते हैं, मैं हियर इट इज 3 टाइप्स इज देयर, लाइक एक एबनॉर्मल है, परस्यूट और सेकंड होता है कि हम एक तरफ से एक साइड से दूसरे साइड जो देख रहे हैं, और एक हुआ कि आप इधर से देख रहे हैं फिर सडनली इधर आया, फिर सडनली इधर आया, तो उसकी वजह से आगे बढ़ने में देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। और इसमें आप सबसे नीचे में निस्टैग्मस का जो टॉर्शनल है वो जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा रोटेटरी मूवमेंट काइंड ऑफ उसमें आपको दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So you can easily see the movement which is happening. So mechanism जो है वो basically अगर मैं technical word में बात करूँ तो it's like foveal concentration, आंखों के अंदर जो रेटिना में एक एरिया होता है फोविया जहाँ पर एक्चुअली इमेजेस फॉर्मेशन रहती है। सो फोविया कंसंट्रेट करता है चीज़ों को देखने के लिए, जो थोड़ी सी मुश्किल होती है, और उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, आप फिक्सेट करना चाहते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, फिक्सेट नहीं कर पा रहे हैं, मूवमेंट पर आपका कंट्रोल नहीं है। और अगर दूसरे वे में देखा जाए तो निस्टैग्मस कई बार हमारी ब्रेन में वेस्टिबुलर सिस्टम है जिसकी वजह जो कंट्रोल करता है आपके हियरिंग वगैरह को भी, उसके साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो निस्टैग्मस मेनली 2 तरह का है, एक है कंजेनाइटल और दूसरा एक्वायर्ड। कंजेनाइटल या इन्फेंटाइल वो है जो कि बिल्कुल जन्म से है, और एक्वायर्ड है जो बाद में किसी वजह से हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इन्फेंटाइल की अगर बात करें तो इन्फेंटाइल निस्टैग्मस जो है वो बिल्कुल जन्म से, कई बार होता है कि पेरेंट्स को अगर है तो बच्चों को होने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये कुछ और नहीं है, बेसिकली कुछ ऐसा प्रॉब्लम ब्रेन में जब ये डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ा सा उधर कुछ होने की वजह से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। और ब्रेन और आई का जो वर्क है वो हम लोग सब जानते हैं कि एक आंख से एक इमेज बन रहा है, दूसरा से दूसरा इमेज बन रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन अगर वो शेकीनेस की वजह से कई बार ये दिक्कत होती है, और एक रेयर है लेकिन ऐसा भी होता है कि एक आंख में जर्क कुछ तरह का है और दूसरे आंख में दूसरे तरह का, विच इज वेरी रेयर, बट ये होता है। सो उसकी वजह से वो आई सिंक नहीं हो पाती और ब्रेन को जो मैसेज जाना चाहिए देखने के लिए वो नहीं जा पाता है। बट इसमें बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, एज मैडम ने अभी जैसा बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 से 6 महीनों में बच्चों की आई टेस्टिंग हो जानी चाहिए। एक बार रिफ्रैक्टिव एरर अगर कुछ रिक्वायरमेंट है वो अगर करेक्शन हो जाता है तो दैट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्वायर्ड, एज आई मेंशन्ड, एक्वायर्ड में भी जैसे लेटर एज में कभी किसी वजह से ब्रेन में चोट लग गया या कोई ऐसी मेडिसिन आपने खाई जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो गया, स्ट्रोक हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ब्रेन में ट्यूमर आ गया या सिर में चोट लगने की वजह से, तो ये सारी रीजन है जो कि लेटर एज में भी निस्टैग्मस हो सकता है। शुरू में जन्म से लेकर के बाद में तक बिल्कुल ठीक था, बट ये जब चोट लगा और कुछ बीमारियों की वजह से या दवाइयों की वजह से ये शुरू हो जाता है। सो ये दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड निस्टैग्मस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसा मैंने बताया, निस्टैग्मस होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, खास करके एक्वायर्ड टाइप जो है। एज आई सेड, पेरेंट्स को अगर है तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। कैटरेक्ट है, स्ट्रैबिस्मस है जो स्क्विंट मैम ने बताया आपको थोड़ी देर पहले, वो हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ब्रेन में चोट होने की वजह से। एल्बिनिज्म के केस में निस्टैग्मस आई वुड से परसेंटेज वाइज वेरी हाई। अगर कान में प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी कई बार निस्टैग्मस होता है, या कोई मेडिसिन ऐसे आपने लिया जैसे लिथियम या सीजर के कुछ ड्रग्स आप ले रहे हैं जिसकी वजह से भी निस्टैग्मस होने का चांसेस बहुत रहता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा परसेंटेज लेते हैं उसकी वजह से भी निस्टैग्मस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब आते हैं सिम्टम्स के ऊपर। सो सिम्टम्स एज आई सेड, मूवमेंट बहुत जर्की रहता है, आप कुछ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, चीज़ें धुंधली दिख रही हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि जो भी रिफ्रैक्शन है आपका, जो भी ग्लासेस लग रहा है या डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट ने या आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने, वो ग्लासेस उनको बिल्कुल समय पर दिया जाए, एक बार अच्छे से, और वो लगाएं। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिसमें कि वो कई बार ग्लास लगाना नहीं चाहते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। सो ग्लासेस डेफिनेटली लगाने चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार आपने ग्लासेस लगाना शुरू किया और तो कई बार आपके सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं रिलेटिवली, वो जो सेंसिटिविटी है, डिस्कम्फर्ट है, वो सब में काफ़ी कमी आ जाती है। आपको वो डिस्कम्फर्ट, किसी चीज़ को देखने में, फोकस करने पे जो स्ट्रेन पड़ता है, वो सब काफ़ी कम हो जाता है। जब आप ज़्यादा थके होते हैं तो डेफिनेटली ये जर्क बढ़ जाता है। कई बारी सुबह जब सो के उठते हैं तो थोड़ा सा जर्क बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके डायग्नोसिस के लिए डेफिनेटली आपको आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो भी है उनसे सब। हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? Yes, doctor. Yes, yes, yes. Continue. तो इसको प्रॉपर एक बार आपके जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आसपास में है उनसे चेक करा सकते हैं। अगर आपने किसी ने निस्टैग्मस नोटिस किया है या जर्क है और बच्चा कोशिश कर रहा है देखने का, कई बारी बच्चे उस चीज, किसी चीज को साफ देखने के लिए उनका सिर भी हिलना शुरू होता है, नॉट करना शुरू करता है। वो कोशिश कर रहे हैं फोकस करने का, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो वो जर्क की वजह से कई बार वो सिर भी अपना ऐसे हिलाते रहते हैं और उसकी वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। सो वो सब चीजें एक बार कंफर्म करा लेनी चाहिए। आई एग्जामिनेशन होना मस्ट है, ईयर एग्जामिनेशन होना चाहिए, न्यूरोलॉजिकल चेकअप होने चाहिए, अगर जरूरत लगती है एक्वायर्ड है तो डेफिनेटली ब्रेन एमआरआई या सीटी स्कैन वगैरह हो जाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि ये जो हमारा अल्बिनिज्म का ग्रुप है, इसमें सबसे ज्यादा मैंने देखा है लोग ये इशू रहता है कि भाई क्या करें, कैसे करें, किनके पास जाएं, किनके पास दिखाएं, सब लोग एक जैसा बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसको दिमाग से निकाल देने की जरूरत है कि इट इज अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। आई मीन ठीक है, टेक्निकली वर्ड इट सेज ओके, बट आई फील दैट यू नो इट इज योर एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। सो जैसा मैम ने भी बताया कि आई मीन देयर आर पीपल हु आर डूइंग वंडर्स, काफी अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। सो अपने आप को डिफरेंट लेने की जरूरत नहीं है। यू नो, you are as good as, you know, God's creation, you are as beautiful as everybody else is. So physical कहीं मैटर नहीं करता है। कई बार इसकी वजह से थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है, थोड़ा कंसर्न जरूर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नो दिस इज समथिंग व्हिच इज आई मीन something very unique and इसकी वजह से आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। I've seen people, there are many people in group who are doing just wonders, and family support is a must. कई बारी वो एक नहीं होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है और somebody feels like kind of silo. So अगर देखा जाए तो one of the basic need of any human is to see and to be seen by other. People with albinism and nystagmus ये थोड़ा issue रहता है, but I see that take it in a very positive way. काफी चीजें हो सकती हैं। आई कांटेक्ट करने में डेफिनेटली इनको दिक्कत होती है कि भाई आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, उसकी तरफ देख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ। अगर स्क्विंट है तो डेफिनेटली और ज्यादा चैलेंज बढ़ जाता है। वो सब इश्यूज है, एंड एट टाइम्स पीपल गेट इनटू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड मैक्सिमम एल्बिनिज्म लोगों को मैंने देखा है कि वो सीधा देखने की बजाय नीचे देखने की कोशिश करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट यू लूजिंग आई कॉन्टैक्ट। वी आर ट्राइंग टू डू इट, बट वो नहीं हो पा रहा है। So, and एक बड़ा रीजन ये है कि probably it is the confidence which you are losing. So in this case, I would say, life is, I mean, the way you take it. और काफी चीजें इसमें बहुत अच्छे से की जा सकती हैं। Insecurity जो रहती है, I don't see कि there is any insecurity. You are as good as all rest of the world. Problem नहीं है। Next slide, please. So how nystagmus can be managed? इसमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो nystagmus और albinism अगर है
सो नॉन इन्वेसिव मेथड जो है, जिसमें कि कोई सर्जरी या किसी चीज की जरूरत नहीं है, गेट योर ग्लासेस डन प्रॉपरली, अच्छा ग्लासेस यूज कीजिए वंस योर रिफ्रैक्शन इज डन। बाकी चीजें मैम ने बताई है, जैसे यू हैव टू वेयर पीक्ड कैप और ये सब ग्लेयर्स के लिए कूलर्स लीजिए। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज, इन माय प्रैक्टिस आई हैव सीन कॉन्टैक्ट लेंसेज, अगर कस्टमाइज कॉन्टैक्ट लेंसेज दिया जाए आपके आई के कंडीशन के हिसाब से, बिलीव मी आपका जर्क भी कम होता है। निस्टैग्मस का मैंने देखा है कि टू एक्सटेंट ऑफ 50% जर्क कम हो जाता है, बट इट हैज टू बी अ कस्टमाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज। नॉर्मली आजकल जो कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल है कि अगर किसी को सिलिंड्रिकल पावर है -3 के साथ से -1 सिलेंड्रिकल है, तो वो स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कंपोनेंट को माइनस करके स्फेरिकल के साथ एडजस्ट करके दे देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आइडियली अगर आप कस्टमाइज लेंसेज, स्टोरिक लेंसेज यूज करते हैं, उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और आपके 50% तक जर्क कम हो सकती है। और उसकी वजह से जो सिर का नॉडिंग करने का तरीका है, जैसे आप कोई चीज को फोकस करने की कोशिश करें तो साथ साथ सिर हिल रहा है, वो काफी फर्क पड़ जाता है उससे। लो विजन डिवाइसेस में माय कॉल विल बी लिटिल डिफरेंट इन अ वे दैट बहुत से लोगों को, जैसे अगर हमने मैग्नीफायर्स दिया या टेलीस्कोप दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैम ने बताया कि यू नीड टू रियली नो कि टेलीस्कोप कब देना है या मैग्नीफायर कब देना है, और इसके साथ साथ एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे अगर किसी को मैग्नीफाइंग ग्लास दिया गया है या टेलीस्कोप दिया गया है, तो टेलीस्कोप में, जैसे मेरे क्लिनिक में आए, मैं 5 दिन ट्रेनिंग देता हूँ हाउ टू ट्रैक, क्योंकि आपको किस हाथ से टेलीस्कोप पकड़ना है, किस हाथ से लिखना है। अगर आप बच्चा है स्कूल में बोर्ड में देख रहा है, तो उसको कौन से हाथ में टेलीस्कोप पकड़ना चाहिए, किससे देखना चाहिए, कौन सी आई डोमिनेंट आई है। और जब वो बच्चा ट्रैक कर रहा है ब्लैक बोर्ड को स्कूल में, सो उसकी स्पीड उतनी होनी चाहिए जो बाकी बच्चों के साथ मैच कर जाए, ताकि वो बच्चा पीछे नहीं रह जाए। तो ये ट्रेनिंग, स्कैनिंग, ट्रैकिंग, ये सब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और बच्चे की स्पीड उसमें हम लोग ट्रैक, जब ये ट्रेनिंग, अगर ये रिहैबिलिटेशन की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, सो गिविंग अ टेलीस्कोप probably will not make much of a difference. And in low vision I see 80% rule of rehabilitation, because आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीजें कैसे यूज करनी और इन चीजों के थ्रू आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा लो विजन, जैसे रीडिंग के लिए मैग्नीफायर्स अवेलेबल है, अलग अलग तरीके के स्पेक्टिकल बेस्ड मैग्नीफायर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा प्रिज्म ग्लासेस दिए जाते हैं अगर किसी को स्क्विंट भी साथ में अटैच है। देयर इज समथिंग, इनफैक्ट मैंने कुछ समय पहले कुछ वीडियोस भी शेयर किए थे। वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स जहां पर कि बायनोकुलर विजन थेरेपी के थ्रू हम लोगों ने विजन बच्चों के बहुत सारे इंप्रूव किए हैं। और एम्ब्लोपिया में जैसे कहा जाता है कि 12-13 साल की एज के बाद एम्ब्लोपिया ट्रीटमेंट नहीं होता है। इन आवर प्रैक्टिस हम लोगों ने 40 साल 45 साल के लोगों का भी एम्ब्लोपिया ट्रीट किया है विद सक्सेसफुल, नो पैचिंग, बिकॉज पैचिंग थोड़ा सा एक बच्चों के ऊपर पेनलाइज रहता है और बच्चा लगाना नहीं चाहता है, फिर भी उसको पैचिंग करें, एक आंख बंद करके देखो। So the things has changed, lot of new things has developed. Vision therapy is one of the another way of improving life, improving vision stamina. मैंने इसको कई बार पहले भी लिखा है, and it is doing wonders, क्योंकि एक बार वो improve हो जाता है तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है बच्चे के लाइफ में, देखने का तरीका, उसका परफॉर्मेंस ओवरऑल स्कूल में, क्योंकि बच्चा का आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत मस्ट है, क्योंकि उसको दूर देखना है फिर नजदीक देखना है। तो बच्चा अगर सामने देखेगा और थोड़ा स्लो भी हो गया लिखने में, तो उसकी वजह से उसका पूरा कैरियर इंपैक्टेड हो जाता है। क्योंकि बाकी बच्चे, अब पता चला कि मदर जो है वो बार बार किसी से कॉपी मांग रहे हैं कि आप कॉपी दीजिए, बच्चे का छूट गया है, लिखना है। सो आई मसल कोऑर्डिनेशन, ये सब भी हम लोग विजन थेरेपी में काफी अच्छा इंप्रूव कर लेते हैं, पर्टिकुलरली पेशेंट विद निस्टैग्मस। मैंने एक बच्ची का बीच में डाला भी था छोटा सा वीडियो। आई ट्रैकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, आई कंट्रोल घर को कम कर सकते हैं। जो विजुअल परसेप्शन है, जो आप देखते हैं, तो जो एबिलिटी ऑफ सीइंग है, उस परसेप्शन को भी इसमें हम लोग काफी अच्छे से कवर कर सकते हैं। बिकॉज अब जो नया मेडिकल टर्म आया है, दैट टॉक्स अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी, एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। किसी भी एज में कुछ भी किया जा सकता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो बाउंडेशन कि इस एज के बाद ये नहीं हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट योर विलिंगनेस, इट इज ऑल अबाउट द पर्सन हु इज ट्रेन्ड इनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन, जो आपको गाइड कर सके, बता सके कि इसको कैसे किया जा सकता है। एंड ब्रेन कैन बी ट्रेन्ड। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई 2 साल का बच्चा है, उसको पेंसिल या पेन देते हैं लिखने के लिए, सो एक बार में उसकी ग्रिप नहीं बनती है, उसके फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। तो उसी तरीके से विजन थेरेपी में हम लोग, वी आर ट्रेनिंग द ब्रेन टू सी। इवन विफ, अगर आपकी विजुअल एक्टिविटी 660 है या 636 है,
उसको हम लोग विजुअल स्टेमिना बढ़ा करके प्रॉब्ली 624 या 618 भी ला सकते हैं, एंड दैट इज प्रीटी मच पॉसिबल। लो विजन के साथ साथ मैं जब इंटीग्रेट करता हूँ विजन थेरेपी को, एंड आई हैव सीन अमेजिंग रिजल्ट्स। आई मीन देयर आर पेशेंट जो मेरे क्लिनिक पे से 660 विजन लो विजन में आए हैं, उसके बाद मैंने उनको एक स्टिमुलेशन किया है करीब 15-20 डेज के लिए, और you know just with stimulation they have improved from 660 to 624 partial, और तब मैंने लो विजन दिया है, so उनका विजन इंप्रूव करके 612 तक आ गया है। और वही 660 में अगर स्ट्रेट अवे लो विजन देते हैं, अगर टेलीस्कोप देते हैं, डेफिनेटली इट विल गो टू 618 एंड यू नो समथिंग लाइक दैट। बट मैं प्रेफर करता हूं कि स्पेक्टिकल बेस्ड दूं, अगर उनका विजुअल स्टेमिना इंप्रूव किया जा सकता है और विजन 624 ले आए, तो विद अ गुड रिफ्रैक्शन दैट कैन स्ट्रेच टू 618 एंड 612, और उनको वो टेलीस्कोप से शायद छुटकारा मिल सकता है। So that is one thing which I would like to emphasize. And you know, जैसे जैसे चीजें इंप्रूव हो रही हैं, जैसे जैसे नई चीजें आ रही हैं, नल पॉइंट की तरफ देखना, हम लोग सबके यू नो पर्टिकुलरली पीपल विद निस्टैग, जिनको निस्टैग्मस है एल्बिनिज्म के साथ, एक जगह होता है जिसको नल पॉइंट बोलते हैं। कोई एक जगह होगा जहां पर कि वो जर्क थोड़ा कम होता है, तो कई बार क्या होता है कि उसकी वजह से हम लोग उस तरफ देखना शुरू करते हैं, एंड दैट लीड्स टू एबनॉर्मल पोस्चर। उसको भी इंप्रूव किया जा सकता है। नल पॉइंट अपनी जगह रहेगा, बट अगर हम लोग स्टेमिना इंप्रूव कर लेंगे तो हो सकता है जो तिरछापन से 60 डिग्री है उसको हम लोग 35-40 डिग्री पर ला सकते हैं। सो ये चीजें फर्क पड़ती हैं, एंड इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। कॉन्टैक्ट लेंसेज भी अगर सही ढंग से दिया जाए, दैट इज जस्ट अमेजिंग। सो ओवरऑल यू नो आई हैव सीन पीपल की ये लगता है कि भाई चीजें नहीं इंप्रूव हो सकती हैं, क्या होगा, कैसे होगा, एंड यू नो within the group also I've seen कि you know that kind of insecurities there कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, but I see a lot of positivity। काफी चीजें की जा सकती है, possible है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। it is all about how you deal with it, and I have always, मेरे अपने खुद के प्रैक्टिस में I always focus on quality of life, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करेंगे वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है हमने आपको डिवाइसेस दे दिए, that will cost you say X amount of money, but उसको ले जा करके कितने लोग यूज कर पाते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है, कई बार यू नो बच्चा स्कूल में मैग्नीफायर लेकर के यूज कर रहा है और बगल वाले ने बोला अरे इसको तो दिखता नहीं, यू नो यू फील इट वेरी बैड। सो व्हाई डोंट वी मूव अहेड एंड थोड़ा सा उसका विजुअल स्टिमुलेशन कर देते हैं, या से विजुअल स्टैमिना बढ़ा देते हैं, तो शायद उनकी हो सकता है उनको स्कूल में लिखने के लिए एटलीस्ट उनको शायद मैग्नीफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी एडिशनल, या बहुत सट करके नजदीक जाके दिखने की जरूरत है। अगर हमने उनको नजदीक जाके 8 सेंटीमीटर पर अगर दिख रहा है, उसको अगर 12 पर भी ले आते हैं विद स्टिमुलेशन, आई थिंक दैट इज वंडर्स, काफी फर्क पड़ जाता है इससे। सो दैट इज व्हाट यू नो आई नीड टू कंट्रीब्यूट। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल, एंड ओवर टू यू अनुभव। I would like to know any questions probably at the end of the session. Yes. Thank you, Dr. Rajiv. What a wonderful session. बहुत अच्छा लगा और बहुत ही deep में जानकारी भी मिली. So we'll get back to you with the questions to you in a short while. Sure. Last but not the least, Dr. Vibha, we have been waiting for you. Sorry to keep you waiting also. Please take over, ma'am. I think ma'am is muted, probably. Okay. Ishita, can you just unmute, ma'am? Okay. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Please go ahead. Yes. Good evening, and thank you, Anubhav. And I thank this group for inviting me to this August gathering. I wish everyone a happy Albinism Awareness Day. As Dr. Prasad had said about the positivity, I look at albinism as a very positive thing because, you know, in India, how obsessed we are about fairness. So all of you should consider that you are fair. We have patients coming to us for becoming fair. And the cosmetic industry is flooded with the fairness creams. So you are already fair. The God has given you fair color. Be happy with it and be very positive with it. However, there is certain care which is special for this light skin, as it is in the Western countries who are light-skinned people. Next, please. Because if you know, melanin
यानी कि कलर अपने स्किन का, उसकी जरूरत है। हम काले क्यों हैं इंडिया में या अफ्रीका में? हमारा रंग काला क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ सूरज की किरणें ज्यादा स्ट्रांग है। ये मेलानिन हमें कंट्रोल देता है, हमारी अंदर की जो ऑर्गन्स है उनको हानि पहुंचाने से बचाता है। इसलिए ये मेलानिन की जरूरत है, और इसलिए ट्रॉपिकल कंट्रीज में और इक्वेटोरियल कंट्रीज में लोगों की स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ सूरज की किरणें कम है या 6-6 महीने सूरज है ही नहीं, वहाँ की स्किन गोरी होती है। और एल्बिनोज में भी ये मेलानिन की कमी होने के कारण स्किन लाइट होती है। तो ये लाइट स्किन यूवी रेज या सूरज के जो किरण है उनमें जो यूवी रेज हैं उनमें 3 किरण रहते हैं, इंफ्रारेड, यूवी रेज एंड विजिबल लाइट। Actually, all of them have damaging effect on the skin. तो UV rays का इफेक्ट ज्यादा डैमेजिंग है, इसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब ये कैसे अपने को हानि पहुंचाता है, क्यों हानि पहुंचाता है? तो हमारी स्किन और नीचे के जो भी लेयर्स हैं उनमें जो भी पेशियां हैं उनके अंदर के जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ये सन रेज डैमेज करते हैं। आपने सुना होगा आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है इन सूरज के किरणों से, और ये हर एक पेशी को डैमेज करता है। अभी जैसे आप लोग आजकल देखते हो कि कोविड वायरस अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर घुसता है और सब सिस्टम को डैमेज कर देता है। उसी प्रकार ये सूरज के किरण हमारी स्किन की जो पेशियां हैं उनको डैमेज करते हैं, और ये डैमेज को हमें रोकना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये क्या क्या डैमेज होता है वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। नेक्स्ट, स्किन डिफेंस मैकेनिज्म्स कौन से हैं? सबसे बड़ा है मेलानिन, दूसरा है हमारी स्किन की इंटैक्ट लेयर। आपने देखा होगा आजकल कोविड के लिए हम लोग बार बार हाथ धोते हैं, साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ की स्किन ड्राई बन जाती है, क्रैक हो जाती है। ठंड के मौसम में ऐसी भी स्किन ड्राई बनती है। अब ये डैमेज स्किन हो गई। अब ये डैमेज स्किन में से कोई भी बाहर की चीज अंदर जाके चमड़ी को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। तो ये हमारी इंटैक्ट स्किन अपना एक और डिफेंस मैकेनिज्म है। और तीसरा है अंदर का अपना फैट टिश्यू, मसल वगैरह। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी है, इनमें से कोई भी हमें 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो हमें अपने स्किन को प्यार से और संभाल के इस्तेमाल करना है, ये बात हम कभी ना भूलें। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मेलानिन ये सबसे बड़ा स्किन प्रोटेक्टर है और हम उसको नेचुरल सनस्क्रीन कहते हैं। ये क्या करता है, जबकि सूरज के किरण मेलानिन पे पड़ते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम समुंदर के किनारे जाते हैं, वी गो ऑन अ सीशोर ट्रिप, आगे वापस आते हुए काले पड़ जाते हैं। गोवा जाएंगे तो काले पड़ के आएंगे, थाईलैंड जाएंगे काले पड़ के आएंगे। तो ये कालापन क्यों होता है? जब सूरज के किरण ज्यादा है तब ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को सिग्नल मिलता है और हम ज्यादा मेलानिन तैयार करते हैं, और ज्यादा मेलानिन से अपनी चमड़ी काली पड़ती है। बट दिस हैज अ प्रोटेक्टिव एक्शन ऑन द इनर ऑर्गन्स। अब कौन से मैकेनिज्म से मेलानिन अपने को प्रोटेक्ट करता है? 3 चीजें हैं। एक तो वो सूरज के किरणों को एब्सॉर्ब कर लेता है और वहीं पे रोकता है। दूसरा है स्कैटर करता है, यानी लाइट को पीछे ढकेल देता है। और तीसरा है नेचुरल स्टेबल फ्री रेडिकल, यानी जो मैंने अभी आपको कहा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो होने से मेलानिन हमें बचाता है। इसलिए आपको अभी समझ में आएगा कि मेलानिन हमें कितना जरूरी है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट,
जब हमारी चमड़ी पे सूरज के किरण पड़ते हैं तो क्या क्या होता है? What all effects do we see? अब एल्बिनिज्म जो है, एल्बिनोज या विटिलिगो पेशेंट्स या बहुत फेयर स्किन्ड पीपल, उनकी चमड़ी जल जाती है। आपने देखा होगा कि आप लोग कभी धूप में ज्यादा दिन रहे, शॉपिंग को गए, पिकनिक को गए, चमड़ी लाल हो जाती है, वो बर्न होने लगती है, सूजन आती है। इसको हम सन बर्न कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा मेलानिन न होने के कारण स्किन को प्रोटेक्शन नहीं मिला। जिनके स्किन में मेलानिन बहुत है, जैसे हमारी स्किन है, काली है, तो टैनिंग होगा, बट टैनिंग गिव्स प्रोटेक्शन। कभी कभार डिलेड टैनिंग होता है, यानी शुरू में थोड़ा सा सनबर्न होता है और बाद में वो स्किन काली पड़ जाती है। ये जनरली हम लोग जो थोड़े गोरे लोग होते हैं उनमें देखते हैं। अब ये इमीडिएट इफेक्ट हो गए कि सूरज के किरण पड़े और उनका इफेक्ट शुरू हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेजिंग इफेक्ट्स क्या है, और वो एल्बिनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा है फोटो एजिंग। एजिंग तो आपको पता है कि उम्र की निशाने अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे दिखना। वो क्या है? अपनी चमड़ी पे लाइंस आने लगती है, फाइन लाइंस होती है, डीप लाइंस होती है, चमड़ी का कॉम्प्लेक्शन बिगड़ जाता है। अभी आप कोई भी यंग जवान लड़के लड़कियों को देखो, उनकी शाइन रहती है, स्किन प्लेन स्किन रहती है। जैसे ही एजिंग होने लगता है, ये स्किन डल होती है, येलो होती है, उसमें ब्राउन ब्लॉचेस आने लगते हैं और उसका कॉम्प्लेक्शन एक सैलो सा बन जाता है। तो ये है फोटो एजिंग। नॉर्मली ये 50-60 इस उम्र में फोटो एजिंग दिखने लगता है, क्योंकि बचपन से हम लोग अपनी स्किन को प्यार नहीं करते, अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते, तो ये उस उम्र से 40 के आगे दिखने लगता है। एल्बिनोज में या जिनके शरीर में मेलानिन की कमी है, उनमें ये जल्दी दिखेगा। अगर आप वेस्टर्नर्स देखोगे, बॉलीवुड के हीरोज हीरोइंस को देखोगे, उनके स्किन पे कितनी लाइंस रहती हैं। आप उसी उम्र की अपनी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस एक्टर्स को देखो, उनके स्किन पे वो फाइन लाइंस उतनी दिखती नहीं जितनी हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस पे दिखती है, बिकॉज दे हैव लाइट स्किन एंड देयरफॉर देयर फोटो प्रोटेक्शन इज लेस, और इसलिए फोटो एजिंग जल्दी होता है। अब ये सिर्फ दिखने के लिए है, ठीक है, उसमें इतनी चिंता नहीं है, बट thing which we should worry about and be careful about is photocarcinogenesis, यानी चमड़ी के कैंसर की चांसेस। ज्यादा सनरेज स्किन में जाने से और उस स्किन में मेलानिन न होने से, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया कि सेल्यूलर लेवल पे कैसे डैमेज होता है, वो डैमेज होने के कारण स्किन में कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ती है, और वही संभावना आंखों के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि आंख के अंदर भी मेलानिन नहीं है। इसलिए अल्बिनिज्म में फोटो प्रोटेक्शन इज ए मस्ट। ये आपके लिए कोई कॉस्मेटिक नहीं है या वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। दिस इज समथिंग लाइक अ मेडिसिन, एंड दिस वन हैज टू रिमेंबर right from very early age. Next. So what are the sunscreens? अब अभी आप मार्केट में जाओ, मॉल में जाओ, thousands of brands are there, so many things are there, so many advertisements are bombarded. How to choose a sunscreen? So let us know something about it, because that will help you in choosing your sunscreens. Sunscreens जो है वो mainly UV rays को चमड़ी पे डैमेज करने से बचाते हैं। पहला सनस्क्रीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स के लिए दिया गया था, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो सब लाइट स्किन्ड थे और अफ्रीका में लड़ रहे थे, एशिया में लड़ रहे थे, जहाँ पे सन बहुत हार्श है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन ऑक्साइड इन पेट्रोलियम जेली, उसको कहा जाता था रेड वेट पेट, तो ये दिया गया था ना। ये बहुत ही क्रूड था, वो दिखने में भद्दा था, लगाने में ऑयली था, कई लोगों ने लगाया, कई ने लगाया भी नहीं, बट एनीवे इट स्टार्टेड इनटू मोशन
And now we have excellent sunscreens available in the market. Next. Now, sun protection की अलग अलग methods है, उसमें sunscreen application ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड है. दो तरीके के सनस्क्रीन्स हैं, केमिकल सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन. केमिकल सनस्क्रीन जो है वो यूवी रेज को फिल्टर करते हैं, यानी कुछ रेज को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ रेज अंदर चले जाते हैं. वेरएज फिजिकल सनस्क्रीन जो है वो पूरे के पूरे सन रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं. पूरे के पूरे यानी 100% नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ द रेज. Physical sunscreens also help in protecting from visible light as well as infrared rays. Next. अब सनस्क्रीन जब हम चुनने जाते हैं तो हमेशा उस पे लिखा हुआ रहता है SPF. बहुत बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम मैं तो निविया लगा रही हूँ, निविया SPF लगा रही हूँ. They imply it is a sunscreen. No. These are the cosmeceuticals which have sun protection factor to the minimal extent, that is 2, 4, 5, and that is not useful when we are seeking photo protection. So range in our country is from 2 to 50 plus. Some of the brands do have beyond 50, but optimum is at least for albinism and light skin 50 plus. Next. Now, physical sunscreens we consider to be better because they are highly effective for UVA as well as UVB light. UVB light हमें immediate sunburn देता है और UVA light कार्सिनोजेनेसिस या अंदर जाके अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करता है. इसलिए हमें दोनों का प्रोटेक्शन चाहिए. इसकी टॉक्सिसिटी पोटेंशियल बहुत कम है. केमिकल सनस्क्रीन्स कई बार खुद ब खुद एलर्जी करते हैं या खुद ब खुद सन एलर्जी तैयार करते हैं. इसलिए आजकल हम केमिकल सनस्क्रीन से भी ज्यादा फिजिकल सनस्क्रीन्स को प्रिफर करते हैं. उनके कंटेंट्स में आपको इसलिए कह रही हूँ, आप जब भी मार्केट जाएंगे आप कंटेंट्स को पढ़ने की आदत रखिए और इनमें से कोई तो कंटेंट आपके सनस्क्रीन में होना बहुत जरूरी है. ये है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टाल्क, केओलिन, सिलिका, माइका, टिनोसॉल. These are physical sunscreens and most of our new sunscreens do have some or the other agent of this. Next. Sunscreens को रेगुलर यूज करना चाहिए, डेली यूज करना चाहिए. हमेशा हमें लोग पूछते हैं, मैम अभी तो बरसात है, मुंबई में तो इतनी घनी बरसात होती है, अब क्यों सनस्क्रीन लगाना है? सही बात है, लेकिन हमें लगाना है क्योंकि क्लाउड्स के अंदर से भी अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आते हैं. हमें घना अंधकार दिखाई देता होगा जिसमें से विजिबल लाइट तो नीचे आता नहीं है, लेकिन यूवी लाइट नीचे आता है और वो डैमेज कर सकता है. लोग हमें कहते हैं हम तो नॉर्थ में रहते हैं, हिमाचल में है, बर्फ है, वहां कहाँ गर्मी है, वहां सन है कहाँ? नहीं, बर्फ में, स्नो में जितना सन रिफ्लेक्ट होके ज्यादा डैमेज करता है उतना लैंड पे, सॉइल पे नहीं करता है. इसलिए हमें, आप कोई भी जगह हो, कौन से भी मौसम में हो, कितनी भी बरसात हो, सनस्क्रीन को छोड़ना नहीं है. आपके लिए वो नहाने जैसा, खाने जैसा एक डेली उपचार है और 365 days you have to use sunscreen. Generally for albinism, I would prefer a combination of chemical as well as physical sunscreen. क्योंकि जैसा मैंने कहा 100% तो कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो हम थोड़ा इसका और थोड़ा उसका, ऐसे दोनों बेनिफिट लेना चाहते हैं. नेक्स्ट. As I was talking about the myths about sunscreen,
then the realities. I think I have covered all these. Next. No, go back. Yeah. तो सनस्क्रीन कैसे हमें चूज करना है? उसकी वैल्यू SPF वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, वो AV UVA और B को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हो सके तो विजिबल लाइट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कई बार लेडीज हमें कहती है, मैम हम तो बाहर जाते नहीं हैं, हमें क्यों सनस्क्रीन लगाना है? आप किचन में कितना समय काम करते हो? जो किचन की फ्लेम है उसमें भी तो विजिबल लाइट है, वो विजिबल लाइट भी डैमेज करता है। इसलिए किचन में गैस के सामने, चूल्हे के सामने काम करते वक्त सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। इट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट। स्विमिंग करने जाते हैं, तैरने जाते हैं और वो निकल गया, क्या फायदा? आप तो मजे में हो, हमने सनस्क्रीन लगाया है, पानी के अंदर हो, ठंडा लगता है, हमें समझ में नहीं आता है कि सूरज की किरणें हमें जला रही है और हम मजे में रहते हैं। तो वो वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, फोटो स्टेबल होना चाहिए, यानी सन रेज उसके ऊपर गिरने के बाद उसका केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार वो डिकम्पोज हो गया तो उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है और वो दिखने में अच्छा दिखे। कई बार पुराने सनस्क्रीन एक वाइट फिल्म तैयार करते थे, तो वी वर नॉट हैप्पी विद दैट, सो इट शुड लुक गुड। नेक्स्ट, सनस्क्रीन कैसे अप्लाई किया जाए? जैसा मैंने आपको कहा कि 365 दिन आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, लेकिन उसको लगाने के कुछ कुछ तरीके भी हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। पूरे खुले हिस्से में सनस्क्रीन लगाना है। इसमें आपको कान के पीछे का हिस्सा, गले का हिस्सा, हाथ और पैर के ऊपर के, मतलब फुट जिसे हम कहते हैं, चप्पल पहनेंगे तो जो हिस्सा खुला रहेगा वहां भी सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल जरूरी है। जनरली 15-20 मिनट बाहर निकलने के पहले सनस्क्रीन लगाइए, ताकि वो बराबर स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। और अगर आप आउटडोर हो, यानी घूमने गए हैं, शॉपिंग गए हैं, ट्रिप्स को गए हैं या पानी में हैं, तो हर 2 घंटे के बाद सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि पसीने से सनस्क्रीन निकल जाता है, डिग्रेड होता है और उसकी इफेक्टिविटी चली जाती है। एक हमने यहाँ सिंपल फॉर्मूला दिया है, क्वांटिटी कितनी लगानी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बिल्कुल थोड़ा लगाते हैं ताकि वो दिखे नहीं, अपनी स्किन वाइट ना लगे, लेकिन वो एडिक्वेट लगाना जरूरी है। ये अपने टीस्पून का मेजर है। छोटा जो अपना नॉर्मल टीस्पून है उसका आधा हिस्सा चेहरे के लिए, आधा हिस्सा गले के लिए, आधा हिस्सा राइट फोराम, आर्म नहीं, फोराम यानी यहाँ से नीचे, और आधा हिस्सा ऊपर। और बड़ा टीस्पून जो है वो आपको टॉर्सो यानी छाती, पेट और पीठ, क्योंकि जब आप तैरने जाते हो, स्विमिंग सूट में हो, तब खुला रहता है, तो ये बड़ा टीस्पून, टेबल स्पून वापरना है। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सर्टेन अदर वेज। खाली सनस्क्रीन यूज करके हमारा काम हो गया क्या? आंसर इज नो। अपने को अवॉइड पीक सनलाइट आवर्स। मैक्सिमम सनलाइट इन आवर कंट्री इज बिटवीन 10 AM to 2 PM. So try not to go out of the house during that period. Cover yourself properly. Full sleeves, gloves, face scarves. These can be worn. Proper closed footwear can be worn. And sunglasses. Never forget to use sunglasses. Seek out shade and sunscreen. Next. So I think I have covered the sunscreens, and do not forget to apply moisturizer at night, because your skin is sensitive skin. Because of the pollution, because of the sun rays, it tends to become dry. And as I discussed
in the beginning, it gets cracked. And in the cracked skin, many allergens from the environment enter in and cause allergy. So for your skin, moisturizer is a must. Thank you. Thank you so much, ma'am. That what a wonderful session. मतलब बहुत ही अच्छा लगा. और I think पिछले 10 साल में पहली बार हम लोगों ने स्किन में इतनी डिटेल में बात करी है. मैंने खुद भी बहुत सारी जानकारी मुझे भी मालूम पड़ी. Because lot of the times it is, we are just connecting people with each other. तो इतना डिटेल में जानकारी मुझे भी नहीं था. And I hope कि a lot of questions are coming for you. So let's take questions one by one. Dr. Sunita, Rajiv ji, if you can unmute your phones, cameras. And do we have time for questions? Like, are you comfortable, doctors on panel? Yeah. So the first question, Priyanka, would you like to take over, Priyanka? Yes, Anuv. Hi, everybody. I am Priyanka and I'm based at Hyderabad. A very happy World Albinism Awareness Day to each one of you. And yes, we are all made to shine. So there are a few questions which I have got in the chat box. I will take it up one by one. Meanwhile, what you all can do is, आप लोग raise hand option है Zoom में. आप raise hand कर सकते हैं. And I will call out your names. You can unmute your audio video and then ask your question directly to the doctors. Okay, so now let me go with the first question. The first question is to Dr. Vibha Nigale. Doctor, we would like to know, one of our attendees would like to know what are the parameters we need to consider while choosing our sunscreen. What should be the SPF? Yes, for your skin, I have already said, choose a sunscreen which has a combination like physical sunscreen and a chemical sunscreen with SPF 50+. Now you can either choose a lotion or a cream depending on which part of the country you stay in. Like people who are up north in colder areas, they can go for a cream-based sunscreen. But people who are down south where heat and humidity is more, we prefer sprays, lotions, or gels. So, doctor, they are looking for brands. People are looking for brand names. Which brands? Yeah. Any specific suggestions? Generally, as doctors, we are not supposed to promote brands. Right. So, I would request you to please check the SPF, check the contents like zinc oxide, titanium dioxide. These are the things which should be there. Silica. So I will turn the question on you. So what is your review of the Lotus sunscreen? Which one? Lotus. Lotus, yes. Frankly speaking, I wouldn't comment because Lotus people do not mention their contents. Right, okay. So I would not know how much, when they say SPF 50, whether right. It is really SPF 50 or not. I do not know. If you want, see, I'll tell you some Western brands, though they are cosmeceuticals, right. They definitely have a research. They mention their ingredients. One of them is Neutrogena, which you can read about. Right. And then in India, go for the pharma company brands. Right. Because they will definitely, when they say there is SPF 50, there is a chance that it will be SPF 50. And anything from the herbal world that can be used as sunscreen? Anything? No, the herbs? No, really. because frankly speaking, they do not have any sunscreening effect. At the most, aloe vera is something which gives a cooling effect. When you get a sunburn and you want something to apply and you want something herbal, you don't want any Western medicine, then aloe vera can be applied, or simple coconut oil will also do. Priyanka, go ahead. Thank you so much, doctor. So another question, this is from me. So sunburns ke liye, what is your recommendation? So if you have a sunburn, so I usually use a calamine lotion. Yes, calamine. First of all, you should not get sunburn. Yeah. That means you were careless.
Yes. Sunburn is not acceptable. It is a preventable thing. So you Yeah. shouldn't be getting it. That is So my first. calamine works is what you Calamine works, but it has a drying effect. You can exactly, apply yes. ice. You can apply ice because ice has a very cooling effect. Avoid applying soap or bath, shower bath or anything because soap and things make skin dry. You can apply calamine, you can apply aloe vera, you can apply any moisturizer. Because what we have to do is the skin which is inflamed, which is damaged, हमें उसको शांत करना है. जैसे रोते हुए गुस्सा हुआ आदमी को हम शांत कैसा करते हैं, बच्चे को शांत कैसे करते हैं, वैसे ही करना. Be gentle and kind to that skin. Gee, doctor, thank you so much. Dr. Rajiv, we have a lot of questions on therapeutic contact lenses, the tinted lenses. So your opinion on that, how useful it is? See, the purpose of therapeutic contact lenses is, all about the glares which you are getting. Other advantage with therapeutic contact lenses, somebody has a refractive error, किसी को plus power है या minus power है. So अगर आप tinted, brown tinted, iris painted lenses को use करते हैं, so आपको glare में भी help मिलता है, and you get a clear vision since the power is also there. But it has to go with customized contact lenses होना चाहिए, not the ready-made one which is available in the market. Okay, So thank you. Yes, these lenses doctor. are really good, I mean, for everybody who has some or the other kind of refractive error. Okay, doctor, thank you so much. Dr. Sunita, we have a question for you. So most of us here on the platform work on computers a lot. So I am basically, I work a lot on laptops and computers. So any kind of exercises which can prevent the strain, so my eyes get dry, there's a lot of strain. So anything which can be done for such Yeah, situations? for computers, I would suggest is that always follow the rule of 20-20, like look at 20 feet distance every 20 minutes or 20 seconds. So this will improve the blinking action of the eye and this improve the lubrication. Basically, whenever you are working on computers, one is eye dryness, you get it. And once you have dryness, then it leads to eye strain, allergies, and a lot of things can happen. Take care of your water content. See that your distance of the computer is at least 1 foot, 1 to 2 foot, and you are sitting far off. Not, but again, it happens with albinism when they have low vision. For them, it becomes very difficult to be away from the computer. You can go nearer to the computer, but again, blink in between. Wear your glasses. If you have glasses, then you should wear it. Then on the computer, you can adjust your brightness, your color contrast, everything can be adjusted. Then nowadays there is an app, Iris, called as Iris, where it protects from the UV, it protects from the blue filter, blue thing which is coming. So you can use that also. Slightly it gives comfort level. Regarding blue cut lenses, again, a lot of debate is over there. Not much research has been there, but one can go for blue cut lenses, but I don't know how much they are beneficial. It is whatever the studies are there, that they are more market driven studies, not from a medical point of view. Studies have not been done, but it is more from a market driven studies are available. So practically speaking, if we have to go for blue cut lenses, then they have to be of very good quality, because we have to see, because it's not, one is blue blocking lenses and one is blue cut. So if there are blue cut lenses, if they cut both the good blue cut, good blue rays and bad blue rays, if they cut both the radiations, then it will not be beneficial. So a lot of things are available. Regarding, so nutshell is drink plenty of water, follow the rule of 20-20, color, improve your color contrast and brightness on the skin, on the screen which is there, and take a break in between. You can just do a simple eye exercises like looking far, looking close, move your eyes to right and left, and then slightly you can put pressure on your pressure points, which can give relaxation. Like these are pressure points. One is this, one is this, and one is this. So if I remove it, one is this, one is this,
and one is this. These are 3 pressure points where you can just do a halka sa massage kar sakte hain. But after proper hand wash nowadays, that is very important. Because Yeah, if you don't do a hand wash, and then, so after proper hand wash, you have to take close to your face and then do it. बस और बेसिकली अगर थकावट होती है इसका मतलब है आप स्क्रीन पे बहुत ज्यादा देर हो, जैसे मैम ने कहा, डॉक्टर विभा ने, कि अगर आपने सनबर्न से नहीं प्रोटेक्ट किया, यू आर केयरलेस. So if you are not protecting yourself from screen and it is leading to eye strain, that means you are overworking on it. And many times it happens, people don't drink water. That is also we have seen. So drink plenty of water. Because again, once you have this dehydration effects, like you are sitting in an AC room, screen पे बैठ के काम करते जा रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं. So that also leads to dehydration itself, dehydration of the eyes and dryness. So it's a vicious cycle. My screen time is around 8 hours or 9 hours like that. My screen time is 10 hours, 11 hours. So every 1 hour you take a break of 20 seconds, like 20, if I say it's 40 seconds. So it's hardly 2 to 3 minutes in between. Right. Thank you so much, Doctor. So, Dr. Rajiv, we have another question for you. So, how useful are the pinhole contact lenses? Do we use them for the sunlight? Yeah, pinhole contact lenses are really, useful if at all. Somebody has like, if they have a good refractive error, and as I said, therapeutic contact lenses and pinhole contact lenses are pretty much the same. There is very slight thin difference. Otherwise, it's all the same. So it is more about, comfort. आपके glare में आपको help मिलता है. बाहर जब आप जाते हो तो जो आँख पे लाइट बहुत ज़्यादा लगता है, उस पर आपको काफ़ी हेल्प मिलता है. और अगर उसको पावर के साथ आपने लिया, आई मीन आपको सिलेंड्रिकल पावर है, स्फेरिकल पावर है, अगर आप उसके साथ जाते हैं, कंफर्ट लेवल इज वेरी हाई, प्रोवाइडेड यू गेट इट डन बाय जो भी कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट हैं, जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट हैं, उनसे करवाएं. बिकॉज दिस इज नॉट अ ओटीसी प्रोडक्ट, कि आप ऑप्टिकल शॉप में गए, उन्होंने बोला जी मेरा ये 3 नंबर पावर है, इसका मुझे एक लेंस दे दो, क्योंकि वो कस्टमाइज नहीं होगा. हर लोगों का आँख का साइज अलग है, शेप अलग है, मेजरमेंट अलग है, डायमीटर अलग है, सो उस कंडीशन के हिसाब से लेंसेज हमेशा क्लिनिशियन से लेना चाहिए, सो दैट आपको एक ऑथेंटिक लेंस मिले जो कि आपके आँख के कंडीशन के हिसाब से हो. Dr. Rajiv, when is the surgical intervention necessary for nystagmus? Or is it necessary for everybody? Can everybody go for it? No. I mean, थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा प्रॉब्ली यहाँ पर, बिकॉज आई मीन आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, आजकल बोटॉक्स और भी इंजेक्शंस आ गए हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं. बट सी, सर्जरी इज ऑलवेज अ सर्जरी एंड देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व. नोबडी कैन गारंटी कि मैंने जो किया है वो हमेशा 100% ओके होने वाला है. तो अगर नॉन इन्वेसिव प्रोसेस को लेकर के काम करते हैं, दैट इज ऑलवेज रिस्क फ्री. अगर किसी वजह से अगर 2 मिनट के लिए आगे पीछे हो गया, हु इज गोइंग टू टेक दैट रिस्क? फोटोक्रोमेटिक अच्छे लेंसेज अवेलेबल है, आप उन सबको यूज कर सकते हैं. निस्टैग्मस के जर्क के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज इज रियली गुड, आपके जर्क को काफी हद तक कम कर देता है. Maybe in surgical part, since probably Dr. Sunita can add little more to it. See, for regarding surgery, again, it has to be a very selective case-based studies which are there. So, like outrightly, I also don't advise surgery for my nystagmus patients. Only nystagmus, if it's a primary essential nystagmus without any ocular pathology, then surgery helps a lot. But if you have an ocular pathology associated with it, then nystagmus, it can become less, but it will not go away. So one has to weigh the benefit versus risk. So if it is, the risk is less, and risk means what will happen. As such, it's not a life-threatening or a sight-threatening thing, but it will not go, like you will have nystagmus again. It's like that. So the jerky movements, whatever rotationally, they will come as it was before. So that thing will be there. Correct. Priyanka, over to you. Okay, so we have a lot of hand raises. So guys, please turn on your cameras. We would like to see you also. So now there is a hand raise from Titanium Vista 4G. I'm not sure who it is. You can unmute, introduce yourself and speak up.
Hello, ma'am. Hello. Yeah, tell me. Yes, we are able to hear you. Please introduce yourself and ask your question. I am from महाराष्ट्र. मैडम मेरा क्वेश्चन है कि लो विजन होने के कारण मैं 40% हैंडीकैप हूँ. हेलो मैडम. हाँ जी तो मैं बताइए। तो डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या मैडम? किसके लिए? डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हूँ क्या 40% हो तो? नहीं, 40% पे आप एलिजिबल नहीं है सर। नहीं है क्या? नो नो, 40% में नहीं एलिजिबल है। दूसरा मैडम, मेरे स्किन पे ब्लैक धब्बे आए सन के कारण. डॉक्टर विभा. यस, सन प्रोटेक्शन आपको करना है बेटे, क्योंकि ब्लैक धब्बे आए इसका मतलब आपके स्किन में थोड़ा सा मेलानिन है. आपके बाल भी पूरे सफेद नहीं है, येलो है. ये भी दिखाता है कि आपके शरीर में थोड़ा मेलानिन है. अब जहां थोड़ा सा मेलानिन है, वो जब आप धूप में जाओगे अनप्रोटेक्टेड, तो वो ज्यादा काम करने लगेगा और वहां पे काला धब्बा आ जाएगा. तो आपको सनस्क्रीन लगाना, अगर आपको वो धब्बे से नुकसान तो कुछ नहीं है, दिखने में खराब दिखता है, इतना ही है. लेकिन आप अगर ये नहीं चाहते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है. ठीक है मैडम. या ठीक है मैडम. ओके, थैंक यू सो मच. अभी विक्रम, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं. हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल? यस यू आर, प्लीज गो अहेड. जी, तीनों डॉक्टर को बहुत बहुत थैंक यू. 30 सालों में इतनी बेहतरीन जानकारी आज तक कभी नहीं मिली. ओके, मेरा ये सवाल था कि गॉगल्स के बारे में कुछ बोलिए ना मैडम. और दूसरा, 10 से 12 घंटे मुझे लैपटॉप के ऊपर काम करना पड़ता है. लैपटॉप में और कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आती है, अगर हम ब्राइटनेस कम करते हैं तो दिखता नहीं, और ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं तो थोड़े देर में वो ब्लर दिखने लगता है. तो इसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं क्या? और गॉगल कौन से टाइप का यूज करना चाहिए ये? और स्किन के लिए मेरा ये सवाल था कि क्या ये स्मार्टफोन और लैपटॉप और इसके वजह से भी टैनिंग हो सकती है क्या हमारे स्किन के ऊपर, स्पेशली अल्बिनोस के लिए? थैंक यू. थैंक यू विक्रम. यस डॉक्टर विक्रम, देखो, अगर हम लैपटॉप पे जो है, सबसे पहले तो आपका लैपटॉप का स्क्रीन आजकल क्या हो गया है ना, लोग छोटा छोटा लाइट वेट उस पे भी आ गए हैं. ठीक है, तो अगर आपका लैपटॉप है, आइडियली थोड़ा स्क्रीन उसका बड़ा होना चाहिए. फॉन्ट साइज आप उसका बड़ा कर सकते हैं. कॉन्ट्रास्ट जो है वो, ब्राइटनेस जो है आप 50 to 60% के रेंज में रखकर देखिए, और कॉन्ट्रास्ट जो है वो थोड़ा 80% बढ़ा दीजिए. यूजली इस बीच में आपको थोड़ा सा प्लानिंग देखना पड़ेगा, प्लस आपको फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसके साथ, तभी इसमें फायदा होगा. नहीं तो अगर आपका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, जैसे आप हम नॉर्मल N12 या N10 कुछ ऐसे 10-12 पॉइंट्स पे जो रख के पढ़ते हैं, वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. अगर आपका वो छोटा है और ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तो आपको आंख में चुभेगा, तो इसीलिए उस हिसाब से आपको प्लेन करना पड़ेगा. दूसरा, आजकल जो लैपटॉप्स है उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस आ गए हैं जिसमें हम मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, तो थोड़ा आप दूर बैठ के भी उससे कामयाबी मिलेगी. एक्सेसरीज में आप जाइए, या आजकल जो नए लैपटॉप्स आए हैं उसमें बहुत अच्छे फंक्शंस आ गए हैं. तो बेसिकली इस, जैसे मैंने 3 B's याद रखा, बोल्ड, बिग, बोल्ड एंड ब्राइटर. बट यहाँ पे आपको ब्राइटर में ये चेक करना है कि इट शुड नॉट बी वेरी ब्राइट, दैट्स ट्रू. बीच बीच में आप दूर भी देखते रहिए, जैसे मैंने अभी बताया, एक्सरसाइज कर, ये एक्सरसाइज का फॉर्म ही है. एंड चश्मा, अगर आपका आई चेकअप जरूर करा लीजिए कि अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है, मतलब कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है. अगर चश्मे का नंबर होगा तो चश्मा पहन के ही कंप्यूटर पे काम करें. रिगार्डिंग one more question can I ask? हाँ जी जी जरूर. हाँ जी, एक्चुअली मैंने डॉक्टर को नंबर के लिए पूछा था, लेकिन वो बोल रहे थे ड्यू टू निस्टैग्मस आपका नंबर नहीं निकल सकता. और दूसरा, बचपन में जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने बोला, मदर फादर को बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीन के कितने भी पास बैठा तो भी इन बच्चों को स्पेशली कोई
हार्म नहीं पहुंचता, हम जैसे को पहुंचता है, मतलब ये कितना सही है? थैंक नहीं, यू। देखो, हार्म तो स्क्रीन से हार्म हार्म मतलब क्या हार्म होना, विजन पे अफेक्ट नहीं करेगा, बट आपकी किसी को भी बहुत ज्यादा स्क्रीन पे बैठना, किसी के लिए भी, चाहे लो विजन हो या नॉर्मल विजन हो, किसी के लिए भी नुकसान हाँ क्यों होता है? अगर ड्राइनेस हो गया, थकावट हो गई, आई स्ट्रेन हो गया, ठीक है, ओके। हाँ उस वजह से होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है निस्टैग्मस में हम नंबर नहीं निकाल सकते, निस्टैग्मस में ही नंबर निकालना एक आर्ट है, ठीक है। तो अगर नंबर होता है तो दिया जाएगा जरूर, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि हर किसी को होगा, हो सकता है आपका नंबर ना हो, या हो सकता है एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, हमारे पास जब हम चेकअप के लिए जाते हैं तो निस्टैग्मस में थोड़ा सा सिलेंड्रिकल नंबर मिलता है। अब वो अगर जैसे 0.5 या 0.75 तक है, तो शुरू में हम कई बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि छोड़ दो, बच्चे वगैरह है, नहीं लगाया। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर पे काम है और थोड़ा सा भी सिलेंड्रिकल नंबर है, तो मैं सजेस्ट करूंगी चश्मा लगाइए, उससे आई स्ट्रेन कम हो जाएगा, ऐसा है। और ग्लेयर कंट्रोल ग्लासेस जो सनग्लासेस वगैरह होते हैं, इसमें यूजुअली जो हेल्प करते हैं वो ग्रे टिंट ज़्यादा हेल्प करती है एल्बिनिज्म में। ग्रे है या अंबर कलर है, ये दोनों टिंट्स ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप पोलराइज ग्लासेस। पोलराइज ग्लासेस बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा रेज आते हैं वो इसमें कट करता है। तो पोलराइज लेंसेज भी अच्छे रहते हैं विद बेसिकली ग्रे कलर के साथ। बाकी डॉक्टर राजीव यू कैन आल्सो पुट अ लाइट ऑन दैट। I think किसी ने शायद चैट बॉक्स में लिखा है about the brand of sunglasses. Yes, exactly. That was the next question, doctor. So, जी. in terms of sunglasses अगर मैं बोलूँ so ideal जैसा मैम ने बताया, grey color is absolutely great for you all. एक कंपनी है Moijim. I mean disclaimer में I have no any interest with that company, but I would say Moijim is one company जो कि Oakley and Moijim जो कि बेस्ट क्वालिटी के कोटिंग्स देते हैं लेंसेज के ऊपर में। आइडियली जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है 18 लेयर कोटिंग होना चाहिए, दैट इज द बेस्ट विच इज कंसिडर्ड। और ये दोनों कंपनी है जो कि एक साइड लेंस के एंटीरियर तरफ में 9 लेयर और दूसरे तरफ 9 लेयर रहता है। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, और उसमें सारे वो लेयर्स अवेलेबल है जो कि आंखों को जरूरत है। जो ब्लू कट और ब्लू कोट की बात है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और जैसा मैम ने भी बहुत क्लियरली बताया कि सारे ब्लू रेज अगर कट हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत है। सो देयर इज गुड ब्लू आल्सो एंड बैड ब्लू आल्सो। सो सारा ब्लू कट करने का नहीं है, बट जब आप ब्लू कट लेंसेज लेते हैं मेक श्योर दैट यू गो फॉर अ गुड कंपनी, क्योंकि वहां पर फिर अनएथिकल होने का चांसेस नहीं रहता है। कंपनीज लाइक कार्ल ज़ाइस, सो ये लोग इस हिसाब से कोटिंग डालते हैं कि आपका जो गुड ब्लू है वो इंटैक्ट रहता है। बट कोटिंग आज के डेट में आई गेस हर लोगों को जरूरी है, लेकिन अगर आप सिंपल एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी जाते हैं, ठीक है ना, सो इवन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इज प्रीटी गुड। कोई जरूरी नहीं है कि ब्लू का तो डेफिनेटली मार्केटिंग इतना तगड़ा हुआ है कि दैट हैज बिकम अ ब्रांड एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग एट इट, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप सिंपल एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी लेते हैं विच इज ऑन एन एवरेज 12 लेयर्स टू 16 लेयर्स कोटिंग, उसमें भी आपका काम बहुत आराम से चलता है। और मैम ने जो गाइड किया अभी 20-20 रूल, हर 20 मिनट पर 20 सेकंड का गैप लेने का है, फ्रीक्वेंट ब्लिंक करना है और दूर देखना है, सो दैट स्पाज्म डेवलप नहीं हो, मसल्स में खिंचाव डेवलप नहीं हो। और आजकल कोविड के बाद तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इनफैक्ट अभी एक छोटा सा मैंने सर्वे किया था, करीब 200 लोगों का सैंपल है मेरे पास, जिसमें कि जो बच्चे पहले 2 से 3 घंटे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे रहते थे, पेरेंट्स से मोबाइल ले लिया बैठे, अभी वो टाइम बढ़कर के 6 से 7 घंटा हो गया है, क्योंकि 4 घंटे उनके स्कूल के क्लास होते हैं, 4-5 घंटे, उसके बाद बोलते हैं अभी इतना देर पढ़ाई कर लिया, अभी थोड़ी देर तो मोबाइल पर गेम खेलने दो या लैपटॉप पे गेम खेलने दो। सो स्क्रीन टाइम हैज इंक्रीज्ड। सो बेस्ट इज ये 20-20 फॉर्मूला। और हमारे इस ब्लिंकिंग में क्या होता है कि हर बार जब हम ब्लिंक करते हैं तो आंख में नया आंसू बनता है और पुराना इवेपोरेट हो रहा है, दैट इज अ पंप एंड मैकेनिज्म व्हिच इज हैपनिंग। सो इवेपोरेशन ज्यादा होगा और बनेगा कब, जब आप स्टेयर करते हो तो नॉर्मली एक बार कंप्यूटर में या मोबाइल पर हम स्टेयर करते हैं तो ब्लिंक रेट जो नॉर्मल करीब 14-15 ब्लिंक है पर मिनट में, वो घट करके 7-8 पे आ जाता है। तो कम ब्लिंकिंग होएगा तो आपको देखने में, आपको बाद में जलन महसूस होगा और भी प्रॉब्लम डेवलप होगी। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि मैम ने जो बताया 20-20 फॉर्मूला, दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला, एक्सेप्टेड ग्लोबली। आई मीन सारे जर्नल सब चीज में ये बिल्कुल एविडेंस बेस्ड है
कि आप 20-20 फॉर्मूला यूज करो, हर 20 मिनट पे 20 सेकंड का गैप लेने का, कम से कम थोड़ा दूर देखने का, सो दैट कि आपकी आंखों पे ज्यादा दिक्कत नहीं हो। और एंटी रिफ्लेक्शन भी अगर आप यूज करते हो तो दैट इज फेयर इनफ। बाकी कंपनी का मार्केटिंग गिमिक है कि चलो ये कोटिंग होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट अदरवाइज एंटी रिफ्लेक्सेस, दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। Thank you so much, doctor. I And hope Vikram आपको मिल गए हैं answers. one thing, Priyanka, I would जी, suggest जी. that nowadays with this online thing going on, it is an advice for parents that please don't allow your children to do online classes on mobile. That is a big Okay. culprit, because with mobile, there are high chances of refractive error to come, the number to come, because it leads to spasm and it can induce more myopia. Okay. Sure. And second, what happens, the mobile, when you are working on a bigger screen, you are making yourself far off. But when you are working on a smaller screen, you are taking it more closer. You have that habit of taking it closer. Okay, so then if you take it more closer, especially, then it leads to a problem of myopia and all. You have to be careful about all these things. So once you are doing anything online, go for a bigger screen. या नंबर वन बिगर स्क्रीन, जस्ट टू ऐड टू दिस, बिगर स्क्रीन तो होना चाहिए। इसके अलावा ये ध्यान रखो कि अंधेरे में आपको लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, appropriate lighting. Exactly. But जब आप doctor, अंधेरे में, with me it is, I feel comfortable in dim light. I Yeah, don't know. that will. Yeah, for but you, without the fact. because it's for you, it's in as for your case base, yes, slightly dim light. Again, you have to see that it should not fall on your eyes. Right. Okay. Thank you all so the much. all the people with albinism and nystagmus or just albinism, the biggest challenge is आप लोग maximum myopia ज़्यादा होता है, and studies have shown that by 2050 half of the planet will be myopic with glasses. So इससे बचना है तो कोशिश करना है कि कम लाइट में, एकदम डिम लाइट में, अगर आप डिम लाइट में तो कंफर्टेबल हो, अंधेरे में बिल्कुल भी मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए या लैपटॉप यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका मायोपिया इंड्यूस करता है, वो और उल्टा बढ़ाएगा। तो पावर आपका बहुत, क्योंकि पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि मेरे बच्चों का पावर इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, बट ये हम नहीं देखते हैं कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा क्या है कि आपका जो डाइट है, मे बी आप कभी एक डाइटिशियन को भी पैनल में आप लेके आओ, दैट डाइट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कब क्या खाने का है, कैसे खाने का है। जैसे सुबह इफ यू टेक अ बनाना आपके बॉडी के लिए अच्छा है, बट शाम के समय आप बनाना नहीं ले सकते हो। सो वो ये चीजें ना बहुत जरूरी है डिस्कस करना, ताकि लोगों को पता चले क्या करना। विटामिन ए का परसेंटेज, बहुत लोग बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो विटामिन ए ले लेते हैं, बट नेचुरल सोर्स से लेना विल बी ऑलवेज गुड। Exactly. Oh, thank you so much, doctor. Dr. Vibha, आपके लिए question था from Vikram. Does these gadgets, kind of induce tanning on the skin? And there is another question: how early can we start sunscreen for infants? मतलब babies को किस उम्र से start कर सकते हैं? Dr. Vibha? Yes. So there are two questions, Dr. Vibha. एक तो विक्रम ने जो पूछा था, do these gadgets actually have impact on our skin in terms of tanning? And the other question is that how early, No, I didn't get the question, my dear. At what age can we start sunscreens for kids, for infants? The physical sunscreen can be started at an earlier age, 3 years and above. Okay, great, doctor. So we have Archit. Archit, you have raised your hand. Please unmute and speak. Hello. Hi, Archit. Go ahead. Good evening, everyone. Good I'm evening. from Lucknow. My question is related to eyes. That जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं होता। They used to dilate our eyes, और कभी कोई नंबर का कोई एग्जैक्ट नंबर कुछ नहीं मिल पाता। और सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि हम लोग जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी आंखों में कुछ वाइट सा, कुछ हल्का का फ्लूइड सा जमा हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया था ऑस्मो ड्रॉप ऑफ सिप्ला। इज इट गुड? Sorry, which drop? I did not get you. ऑस्मो ड्रॉप ऑफ सिप्ला। Yeah, osmo. See, जब आप कंप्यूटर में बैठते हैं और ये जो व्हाइट फ्लूइड जमा होता है, इट मींस यू आर नॉट ब्लिंकिंग प्रॉपर्ली। जैसे राजीव ने बताया, राजीव ने अभी बताया था कि ब्लिंकिंग मैकेनिज्म जो है, इट शुड बी अ फुल ब्लिंक एंड फुल ओपन, फुल ब्लिंक एंड फुल ओपन। सो इफ यू आर नॉट ब्लिंकिंग दैट प्रॉपर्ली, व्हिच इज देयर, वो आई
के कोने में यहाँ जमा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो एक छोटा सा एरिया बना हुआ है ना। सो इसको चीज को जमा नहीं होने देना है। अगर ये जमा हुआ तो इसकी वजह से एलर्जी, आई इन्फेक्शन, ये सब होता है। ऑस्मोड्रॉप्स इज अ Can you fair enough suggest good anything? drop. Sorry, Okay. Arshit, Can you suggest any other other medicine for this or any other drop? Osmodrops is a good drop. Basically, all lubricants are good. They should be preservative free. If you are using it for a long time, then preservative free drops होने चाहिए. So Osmodrops, there are many उसका कोई side companies effect नहीं? nowadays. Sorry, उसका He कोई asked side any effect नहीं side है? effects. Yeah. नहीं, Osmodrops का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी लुब्रिकेंट अगर विदाउट प्रिजर्वेटिव्स है और उसको आप लॉन्ग समय के लिए डाल रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसमें भी आपका जब ड्रॉप आप डालते हैं तो आपको ध्यान देना है कि ड्रॉप एक ही डालना है, क्योंकि एक ही ड्रॉप आंख में जाना चाहिए, दूसरा ड्रॉप ऐसे ही बाहर चला जाता है। इसलिए हमने 3-4 अगर ड्रॉप्स डाल भी दिए तो एक आंख में रहेगा, 3 बाद में, तो वो स्किन को और थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। इट इज बेटर कि पुट 1 ड्रॉप, आंख ऊपर देखिए या नीचे, इसमें एक ड्रॉप डाल दीजिए, उसके बाद आंख को 2 मिनट के लिए एटलीस्ट फॉर 40 to 50 सेकेंड्स क्लोज रखिए। उसके बाद फिर 1-2 बार ब्लिंक कर लीजिए एंड देन स्टार्ट योर वॉक। So this is regarding Ma'am, drops. what about doctors used to dilate our eyes and no conclusion is there. Every 6 months I visit them और कोई conclusion तो मिलता नहीं है बस। नहीं, देखो कंक्लूजन इन द सेंस व्हाट कंक्लूजन वी रिक्वायर, बेसिकली व्हाट। देखो कई बार क्या होता है ना, जब हम डायलेट करते हैं तो उसमें हमें नंबर कंपोनेंट्स मिलते हैं। अभी जैसे हमने डिस्क्राइब किया था एस्टिग्मेटिज्म होता है ना, तो यूजुअली मायोपिया कॉमन होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, उसमें 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। तो कई बार हम पूरा करेक्शन दे देते हैं, कई बार हम अंडर करेक्शन भी करते हैं। जैसे हमारा नियर विजन बेटर रहता है तो हमें कई बार अंडर करेक्शन भी करना पड़ता है। तो इस वजह से आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हैं तो कोई आपको जैसे बोलेगा 4 है, कोई बोलेगा 4.5 है, कोई बोलेगा 3 है, कोई बोलेगा 3.5 है। तो यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इन द सेंस कंक्लूजन सेंस व्हाट हैपेंस इज आपका जो भी करेक्शन होगा उससे बेस्ट अप्रोप्रिएट, जैसे आपको एक लाइन ऊपर की दिख रही है, आपको जैसे ही नंबर डाला तो वो एक लाइन जो दिख रही है वो बेसिकली जब वो दिखाते हैं तो हमको ई दिखता है, वो बड़ा वाला ई क्लियर दिखता है। हाँ, बस वो जो ई है जो बड़ा दिख रहा है वो कितना क्लियर हुआ उससे, ठीक है। एक वो होता है, वो चेक करना है। हो सकता है आपको दूसरी लाइन ना दिखे तो वी आर ओके विथ इट, आपको वही दिखे, बट वो ई जो थोड़ा क्लियर हुआ वो ही बहुत ज्यादा है। एंड सेकेंड, हम जब नियर विजन के जो लिए देखते हैं, अगर सिलिंड्रिकल है देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेन कम पड़ेगा। ये तो आपका अगर सब कुछ सिलिंड्रिकल है, दूर वाला ई तो ई रहा, सेकेंड लाइन पे आप आए नहीं, लेकिन जब आप रीडिंग के लिए करते हैं उसमें वो हेल्प करता है सिलिंड्रिकल नंबर। हाँ, मायोपिया अगर प्लेन है तो कई बार बहुत सारे लोगों को विदाउट चश्मा ही बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि आप नजदीक रखते हो तो मैग्निफिकेशन इफेक्ट देता है, और तो दैट इज ओके, फेयर इनफ टू वेयर विदाउट ग्लासेस आल्सो। बट अगर सिलिंड्रिकल साथ में है तो आई वुड से दैट वेयर ग्लासेस। ये तो इसलिए यूजुअली हम जब ये कंफ्यूजन होता है कि रिजल्ट नहीं निकलता, बिकॉज वी नो द रिजल्ट को 660 ऊपर का ई दिखेगा, ठीक है। अगर ई से ज्यादा सेकंड लाइन पार्शियल हुआ तो वो हो सकता है। देन विजन ट्रेनिंग की जैसे राजीव ने बात की थी, विजन स्टिमुलेशन, ऑल दैट कैन बी वर्क फॉर इट। आगे हम विजुअल क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। Okay, Priyanka, last 2 quick questions. Yes, so we will take 2 hand raises. Let's wind it up as soon as possible, guys. So we have Prashant who's raised his hand. Prashant, please unmute and speak. Prashant Naik. Hello. Yes, Prashant. Yeah, Yes, my Prashant. question is regarding prismatic glasses. I am using prismatic glasses with the power of 5. So I use them all the time for reading purposes, for computer work. Is it okay, or is there any better option for that? प्रशांत, काफी चीजें। हेलो, Yes, doctor.
Yeah, you can use these glasses. These are all magnifying glasses, and if you are comfortable without any strain, you can use it. There is no problem. Somebody must have prescribed you, or you have taken it off on the line only. It has been given as a prescription, or you have taken it on your own. No, I got prescribed from the Sankara Netralaya. ठीक है. So if you are using, we also give it, and you are comfortable, you can use it, no problem. It magnifies the image. You can use it Thank for the you. computer also, and you can use it for the reading. Yeah. There is no harm. Thanks. Thank you so much. Hope this answers your question. We have Twinkle who's raised her hand. Twinkle, unmute and please speak. Before Twinkle, let me just thank you, Dr. Vibha. Dr. Vibha is leaving us. She has some urgent work right now. Anubhav, please don't ask her to leave. I have a question for her only. Achha, okay. Just go ahead. Hello, ma'am. My name is Twinkle Bess. I am from Indore. And hello, everyone. Happy Albinism Awareness Day to all. Ma'am, मेरा क्वेश्चन आपसे है, विभा मैम, कि मैम मतलब हम जो कॉस्मेटिक्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में, जो स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपके सजेशंस चाहिए थे कि कैन वी यूज देम और शुड बी गो फॉर स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स. फॉर एग्जांपल आजकल मूवमेंट चल रही है कि भाई पैराबेन फ्री सनस्क्रीन यूज करने चाहिए, सॉरी पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए. So what is your take on that? Should we keep in mind that thing? See, you can use any cosmetic product. आपको मेकअप करने से कोई नुकसान नहीं है. इनफैक्ट जो बेस होते हैं, पाउडर होती है या फाउंडेशन आप लगाते हो, उनमें सब में कैलेमिन होता ही है, और कैलेमिन एक सनस्क्रीन है ही. तो आप ये सब यूज कर सकते हो. सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना, ये एक बात है, और उसके नीचे सनस्क्रीन लगाने को नहीं बोलना. अच्छा. Otherwise, go ahead and enjoy your makeup. Thank you so much. Thank you. So I think I have kind of addressed to all the queries, kind of taken up everybody who's raised their hands. So if there are any further questions, I think you can post it to Anubhav. Anubhav will direct it to the doctors later on. So Right. Anubhav, over to you. Yes. One minute. Hello. Yes, ma'am. Please go There ahead. was one important question here. I would like to answer that. Ji, please. Yeah. Someone has asked about dyeing the hair and the eyebrows. Right. Yeah, it's a very, very important question. So I thought before leaving, I'll answer that. Ji. Hair dye you can use. There is no harm. But remember one thing. Hair dye definitely damages hair to some extent. So some hair fall would come as a part and parcel of dyeing the hair. But it can be done because many women and men do it. There is no reason why you cannot do. Eyebrows, I'm not so sure about because that's a area which is very close to eye. The products are slightly harsh, so they can cause allergy. So I wouldn't really recommend that. What you may think of doing is, nowadays, eyebrow shaping has come. It's a kind of a tattooing. So that you may think of doing if you are very keen on getting the eyebrow color. But hair dye, I wouldn't recommend for eyebrows. Hair, it is fine. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, doctor. So in the end, first of all, I would like to thank myself for organizing such a wonderful webinar. And no, it doesn't go like this. Okay, I need to thank the doctors on the panel first. So my heartiest thanks to all the doctors on the panel for coming and sharing such valuable time, information with us and answering all our questions. I mean, truly deepest gratitude to all of you. And we hope to organize many such webinars. This has been a learning experience for all of us. Thank you so much.
we would be on, of course, because just to have a informal discussion. If you want to be a part of it, you're please more than welcome. And wish you a very happy Albinism Awareness Day once again. Thank you everybody. And also let me mention two very important names: Miss Ishita Unadkat from London and Priyanka Heda for organizing the entire conference and designing all the materials and keeping us engaged throughout the session. So thank you, Ishita, and thank you, Priyanka. Thank you, Anubhav. It's been a Thank you, total Anubhav. pleasure. Thank you all, and have a lovely day. Okay, guys, You all before shining you spark. Thanks. Thank you, Dr. Sunita, and thank you all the lovely doctors. Before everyone goes, I just wanted to do a quick save the date for next week. I think Rajiv ji did mention about having a dietitian on the panel. So we have a full webinar introducing our lovely Miss Ambani Garg, who will be going through a healthy lifestyle to a better living for all of us with albinism or parents of children with albinism. And really, it's something that is for everybody. So we look forward to continuing our webinar series for next week. Any feedback, kuch bhi hai, questions that you that haven't been answered during this session, please direct them to Anubhav, and also we have his contact details and phone number. But feedback would be very appreciated, and we can try and bring on more sessions. So I look forward to seeing you on later. Thank you all, and have a nice day. Enjoy your day. Yes, thank you, ma'am. Thank you Thank you so much, ma'am. Thank you. Once again, Anubhav and all the team. I mean, it was wonderful being with you all and discuss. And looking forward for many more sessions. Absolutely. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you.